because that's a very important thing. Taking up exam is something else, and how to do it and how to get results in it is something very different. And it's a very technical issue, and I think Divakarji is an expert in that. And we are very grateful that he has given us his precious time to mentor our students and guide them and give his important guidance to all of them so that they can all appear with flying colors, and the success rate of our hostel is fantastic in the mains. So welcome दिवाकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सब लोगों की तरफ से, सुस्वागत। Okay, hello, Nilesh, shall I proceed further with this? Hello. Yes, sir. Please go ahead. Okay, yes. Okay. I'll just mute all of you so that at least कुछ disturbance नहीं रहे, ठीक है? So firstly, thank you Nilesh ji, thank you Rajiv ji for welcoming me, and that was really very warm welcome. In fact, thanks for that. First thing, जो Nilesh ji ने एक word use किया था, that he obviously congratulated you, and I congratulate you, but I want to congratulate you once you crack the final list, because that is the most important part and you people are actually planning for that. सबसे पहले thing, he used a word called as welcome for entering into the elite group of qualified civil services. I hope you understand the importance of that. That this year there have been many students of mine itself who have actually, could not qualify despite giving 3 mains or multiple mains as well. They could not qualify the prelims. First thing, that's good. Achievement is done. और उसको सर पे नहीं बिठाना है, we need to move ahead. The point is this, अगर आप अब इस elite group का part who was actually qualified the prelims, do you understand the competition which you are going to face in the mains examination? Do you people, I think, yeah, see, I've got the data here. There are 19 students, 10 people are writing the mains for first time, and there is 1 student who have written, and there are approximately 9 students who already have an experience of mains. 2 at the second time, 7 students, third attempt 1, and 4th attempt 1. I think you people are having some sort of experience as far as the mains is concerned. 10 student, at least 50% I can say, is writing it for the first time. Understand the first thing very clearly. After giving 4 civil services interview consequently, last being in 2012, what I have actually come to understand about civil services this, कि mains के अंदर there are certain specific issues which are commonly faced by majority of the people. Don't worry, I'm not going to give you a sermon here कि 2-2.5 घंटे का lecture है. I want to really bank on the points that you should keep in mind and the points you should definitely avoid for actually attempting the mains in the best possible manner, so that at least your name can appear in the holy PDF, the final list. If you understand the elite, understand, the point is this, if you understand the type of and the nature of questions which are asked, you will see there is a very huge competitions present there. Many people who have done their PhDs, doctorates, and so on and so forth, you will understand they are actually going to compete with you at the same level. So there may be some person who have just started the optional, and there are people who are actually mastered their optional in the previous attempts, and they have to just revise the things up and don't have to study that up. In this context, you need to actually ensure that your understanding, your analysis, and your writing, all the 3 are together. It's an equilateral. Studies, analysis, and writing equally matters. एक भी अगर कहीं पे कमी होती है, all India services remains a dream. Sorry to say that, but this is not to demotivate you, but to shake you up so that you realize the importance of this opportunity of writing the mains. Before going into what is required and what should be avoided as far as the success in mains is concerned, 3 question मैं आपको पूछूंगा, and believe me, I'll come to know the nerves of yours, okay, where exactly you're standing in your mains. First, or these are not what you call as any rocket science questions, very simple type of stuffs, and that will at least help me and also help you and others to understand at which positions you are standing as far as the 7th January is concerned. First question is this: uses of artificial intelligence. I don't want anyone you to speak and tell me that we'll handle in the doubt sessions right now. सिर्फ एक small way में आप chat के अंदर मुझे mention करो. I'll give you 10 seconds after every question. Uses of artificial intelligence. What do you think? How you can use the artificial intelligence in order to in the Indian context? 20 seconds. Guys, take it seriously. The reason being, there is a reason why I'm asking you these questions.
just to, it's just not for the sake of, just asking the questions, but there is a very deep hidden meaning behind this. Artificial intelligence, the uses of artificial intelligence. I put it very simple. UPSC will not give as simple as I have given it. Anybody? अरे एक पॉइंट तो कोई भी बता देगा यार. इमेजिन करो 250 वर्ड पे लिखना पड़ सकता है ये आंसर आपको. And on all the points of syllabus. See, these are very superficial. I just see mains. अब PT खत्म हो गया guys. Mains में हो आप specifically hit करो bullseyes. It's a vanguard of the new robust governance model. Governance, efficiency, Niti Aayog's national AI strategy, good enough, agriculture and others, health sectors, approach. Okay, चलो काफी आंसर्स हैं. तो अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ. Understand why I specifically asked these questions, because I knew it very well. Artificial intelligence is considered as a technology, no doubt, that is right. But at the same time, आपके answers भी आप technologically ही related देते हो. Did anybody think of how an artificial intelligence can be used in what you call as, जैसे for example, जैसे आप DAF fill कर रहे हो, DAF verification के लिए, passport के अंदर police verification के लिए. Did anybody understand how artificial intelligence can be used in order to raise the skill development by analyzing the skills of the people at present and highlighting them or advocating them and on what field they are good at, and we can develop those skills respectively in those peoples, rather than forcing the people to choose a career which they are not, their, the mind or their way of thought is not suitable to it. Problem कहाँ है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी हमने हिंदू में पढ़ा, हमने मैगजीन्स में पढ़ा, हमने किताबों में पढ़ा, बट हमने कभी सोचा नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कि मैं यहाँ पे कैसे यूज कर सकता हूँ. इफ आई बिकम अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, हाउ कैन आई यूज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन ऑर्डर टू इंप्रूव द लाइफ ऑफ द पीपल, बिकॉज एवरी टेक्नोलॉजी, आपके आंसर्स मेंस के अंदर प्रैक्टिकल होने चाहिए. द ओनली पॉइंट ऑफ दिस, नीति आयोग सबने पढ़ा होगा यार. आपको क्या लगता है जो लोग मेंस लिखने जा रहे हैं 75 ईयर्स का प्लान या फिर इंडिया एट 75, नहीं पढ़ा है, सबने पढ़ा है. दो चीज डिफरेंस कर जाएगी, जो पढ़ा है वो कितना यूज कर पाओगे, दूसरी चीज एक नोवल पॉइंट उधर ऐड कैसे कर पाओगे. मैं आई हैव जस्ट मेड सर्टेन टाइप्स ऑफ नोट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर, आई विल गिव यू विद डेट्स कि इस टाइम पे ये न्यूज़पेपर में ऐसी चीजें थी. सेकंड क्वेश्चन, सो आई वांट टू अंडरस्टैंड कि कितना ब्रॉड सोच सकते हो. तो सेकंड में वो क्लू लेके चलना आप साथ में. How to stop the fake news? Fake news has been a very biggest issue in the Indian society in the recent time. What are the ways or mechanisms which should be adopted in order to stop, if not stop, at least tackle or tackle the fake news present in the Indian society? क्या तरीके हो सकते हैं? Fake news can be used to tackle it. Yes, good enough. Artificial intelligence can be used to tackle it. But I do understand chat के अंदर आप शायद पूरा explain नहीं कर पा रहे हो जो आप बोलना चाह रहे हो. But specifically मुझे कोई points दोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगी, because superficially अब मैं हर statement में बोल दूं कि syllabus से कोई भी एक topic उठा के if I just relate it there, technological platforms like PIB, fact check, okay, good enough. Recent time में किया भी गया इंडिया के अंदर, if you know that. और कुछ 5 more seconds. Increasing social media literacy. Well said. Regulations for the regulators. ठीक है, this has been okay. Enough. अब एक चीज सुनो. सेकंड में भी आपने क्या किया? फेक न्यूज जो आया, बना, उसके बनने के बाद में उसे टैकल करने के सॉल्यूशंस बताए. ऐसे करो, रेगुलेटर बनाओ, या फिर कुछ और फैक्ट चेक होना चाहिए, या फिर सम मैकेनिज्म शुड बी बिल्ट अप बाय यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि जब भी न्यूज आया आप आइडेंटिफाई कर लो. किसी ने ये सोचा कि फेक न्यूज बंद ही कैसे करती जाए? किसी ने कोई सॉल्यूशन में बताया कि हाउ टू स्टॉप द फेक न्यूज इटसेल्फ? किसी ने बताया कि लेट्स सी कि अगर हम स्टॉप नहीं भी कर सकते उसका, द बर्थ ऑफ दिस फेक न्यूज, सपोज इफ इट इज नॉट स्टॉप्ड, हाउ वी कैन एक्चुअली, और सपोज उसका रेगुलेशन भी ठीक से नहीं होता और सपोज वो मार्केट के अंदर आ जाता है, मार्केट प्लेस के अंदर आ जाता है, तो फिर उसकी इम्पोर्ट इज हाउ टू मेक दैट फेक न्यूज इम्पोर्टेंट. वो होने के बाद भी अगर यूजलेस कैसे बनाना है, किसी ने उसके बारे में आंसर बताया. आई विल टेल यू. फॉर एग्जाम्पल, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू ट्राई टू change the way the education at the schools, we need to introduce the specific lessons or analysis and others where the people, जैसे newspaper reading मेरे टाइम के अंदर होती थी मेरे schools के अंदर, where they used to teach के how to read the newspaper, analyze the newspaper, what is happening, that should be there. ठीक, इससे बंद होगा पहले.
सपोज आता है तो वहां पे आपने मेजर्स बताया, रेगुलेटर्स ऑफ द रेगुलेटर्स एंड सो मेनी थिंग्स, और लेट्स अज्यूम यहाँ पे भी ये मैकेनिज्म फेल कर जाता है एंड सपोज इट कम्स टू द मार्केट प्लेस एंड इट इज कंज्यूम्ड बाय द पीपल, हाउ टू रिड्यूस द इफेक्टिविटी ऑफ दैट फेक न्यूज। यहाँ पे क्या यूज हो सकता था? यहाँ पे यूज हो सकता था प्रोटेक्टिंग द माइनॉरिटीज, बिल्डिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ दीज माइनॉरिटीज। मेजरली फेक न्यूज किस कंटेक्स्ट में आते हैं? दलित्स, माइनॉरिटीज, चाहे वो लिंग्विस्टिक हो, रिलीजियस हो, कास्ट हो, या कोई और माइनॉरिटीज हो, इनको अगर प्रोटेक्ट करूंगा, इनको अगर डेवलप करूंगा और इनकी सोशल जस्टिस को इंश्योर करूंगा, तो फेक न्यूज का कोई मिसयूज हो ही नहीं पाएगा। कल को ये नहीं पाएगा कि एक दलित गर्ल का रेप हुआ है तो वो दलितिफिकेशन ऑफ व्हाट यू कॉल एज दैट पर्टिकुलर सेक्सुअल हरासमेंट। अगर करेगा भी तो उसकी इंपैक्ट नहीं होगी, क्योंकि सोसाइटी विल बी वेल इंटीग्रेटेड। सो पॉइंट सेकंड में भी क्या दिखाई दिया? वेरी नैरो अंडरस्टैंडिंग। अगर अंडरस्टैंडिंग ब्रॉड भी है तो हम उसे 250 वर्ड में उतार नहीं पा रहे हैं। तीन चीजों ब्रेक, इफ आई जस्ट गिव 3 dimensions of controlling the fake news, don't you think my answer will be more breathing, more analytical and more ground reality based, where my answer will include not only the novel points but it will also include my analysis, where the UPSC in the recent times, by asking the analytical questions, open-ended questions, is clearly indicating you that they require a thinking mind. They don't want a people who have come out and read a book and giving an answer and getting selected. So make a point very clear, during my time आप IAS बन सकते थे किताब पढ़ के। आज आप कितनी भी किताबें पढ़ लो या मटेरियल पढ़ लो, IAS तभी बनोगे जब एनालिसिस कर पाओगे उस कंटेंट का। थर्ड क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन व्हिच आई एम गोइंग टू आस्क यू इज दिस। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, ये सेम वर्ड, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट यूज किया गया था हिंदू न्यूज़पेपर में। द डेट वाज September 2 का न्यूज है पिछले साल का 2019 सितंबर का, जस्ट नियर योर मेंस, लास्ट ईयर्स मेंस। the statement was this, I have made this into a question: sustainable land management can reduce, I'll go slow, sustainable land management can reduce multiple stressor on ecosystem and society. Comment. I'll repeat it again once. Sustainable land management can reduce multiple stressor on ecosystem and society. Comment. What is the meaning of the question? How would you approach the question? पीछे ऊपर वाले मैंने सीधे सीधे पूछे थे, जस्ट वांटेड टू नो द डेप्थ ऑफ इट, बिकॉज नीलेश जी ने मुझे स्पेसिफिक पॉइंट बताया था कि कुछ स्टूडेंट का स्पेसिफिक डाउट था कि इंटेंसिव जाना चाहिए या एक्सटेंसिव जाना चाहिए। योर आंसर वुड हैव बीन वेरी वेल आंसर्ड बाय दोस टू क्वेश्चन इटसेल्फ, और एल्स आई विल आंसर दैट इन द सेशंस वेयर यू विल बी आस्किंग द क्वेश्चंस। Anybody who can just tell me the meaning of the question or how you will be approaching this question? Don't you think beautiful question बनता है? ये न्यूज़पेपर का स्टेटमेंट है, September 2 हिंदू, आप गूगल करके चेक कर लेना, I have not made it up here। अगर ऐसे स्टेटमेंट्स आप न्यूज़पेपर से मिस कर रहे हो तो एक तरफ आपकी इफेक्टिव आंसर राइटिंग भी मिस हो रही है और दूसरी तरफ अच्छे खासे कंटेंट मिस हो रहे हैं। दिस कंटेंट कैन बी यूज्ड एज अ कंक्लूजन इन सम ऑफ द आंसर, बॉडी इन सम ऑफ द आंसर्स, और maybe can be a fantastic introduction for any of the answers. Anybody who can rightly interpret the question कि ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? I'll repeat. Sustainable land management can reduce multiple stressor on both ecosystem and society. Anybody? Nobody. 7 January is nearing and I respect your time. Land is limited resource and competition for it leads to environmental degradation and also social fissures. Perfect. एकदम सही अंडरस्टैंडिंग है। इसके अंदर होता क्या है कि मेंस में 180 minutes 4000 words has to be written. 1 मिनट में एटलीस्ट आपके पास 60 वर्ड लिखने के, अब ऑन एन एवरेज आई एम टॉकिंग अबाउट 50 से 60 वर्ड लिखने पड़ेंगे। उस रेस के अंदर आपके दिमाग में कई बार आधा क्वेश्चन पढ़ के लैंड सस्टेनेबल, आप सीधा इकोसिस्टम लिखना चालू करोगे और लास्ट वाला वर्ड जो इधर लिखा हुआ एंड सोसाइटीज मिस कर जाते हो। Why? Just for the sake of completing the paper, you actually do not even complete the damn question in your question paper. क्वेश्चन को पढ़ाना कंप्लीट हमको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, क्योंकि हमें पेपर कंप्लीट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आवर साइकोलॉजी की सेटिस्फैक्शन इंपॉर्टेंट है कि मैंने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। Yes, some people have given the answers well good. Shubham, good. Some Mr. Sabu was also there. Good enough. You understood the questions, because the fight in the mains is only of understanding the questions. I'll just quote one small statement of Albert Einstein. Albert Einstein once said that if he's given 1 hour to solve a particular issue which decides his life, जो 1 घंटे में वो solve करेगा तो जिंदा रहेगा नहीं रहेगा, which determines his life, then he said he will spend 55 minutes in framing the right question for the issue.
कि उस इश्यू को अगर राइट क्वेश्चन के फॉर्म में मैं प्रेजेंट कर लूंगा एंड देन ही एडवोकेटेड इन 5 मिनट्स ही एबल टू सॉल्व द इश्यू इटसेल्फ। तो मतलब क्या है, किसी भी चीज को सिंपलिस्टिकली फॉर्म में समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आइंस्टाइन साहब, जिसकी आईक्यू आज भी वर्ल्ड के अंदर वन ऑफ द बेस्ट मानी जाती है, अगर वो ये बोल रहा है तो एटलीस्ट हम उस आईक्यू के नहीं है, एप्लीकेशन करके एग्जाम से पहले शायद समझ तो सकते हैं कि वेदर ही वाज राइट और रॉन्ग। So only point right now in these 3 questions is this, which I'm trying to make you is, one, in mains, never go extensive. Always focus on the intensive aspect of every part. Next 20 minutes, I'll clarify every question, every point which I make on the basis of previous year's questions asked in the civil services, so that you understand the nitty-gritty of it and the importance of it, what I am saying to you right now. Because see, people have built their experience. I have built mine over the past, several years of preparations and as well as the attempts. It is something which I feel कि people should not waste their 4 attempts, because जब तक मुझे realization हुई, time बहुत आगे बढ़ चुका था. I made certain blunders which I don't want you to make certain blunders. So please focus on this कि आज के बाद जो भी issue पढ़ोगे proper understanding के साथ पढ़ेंगे, नहीं तो उस issue को छोड़ दो, ज़्यादा बेहतर है. Because at the end, when you go into the examination, I'll tell you certain points which you should definitely avoid. Let's see. अब आपको जो mains qualify करने के लिए चीजें जाननी जरूरी है, वो मेरे हिसाब से, see, everybody has their own understanding. It's quite subjective, but this is something which helped me to qualify my mains when I was giving. First, before examinations कुछ point, उससे exam से पहले आपको करने पड़ेंगे, and during examination. Before examination, the first point which you should always keep in mind is this, that every subject, every issue should be deeply understood. It should not be superficially understood. The people who have given their mains, who are at least 50% here in this crowd, understand the point very clearly. एक रीजन जब अपना टटोलोगे कि क्यों कहीं ना कहीं मेंस रुक रहा था, the reason would have been कि आप वहां जाके majority of the things was something which you only had a vague idea of. And yes, 10 क्वेश्चन more than average और 10 क्वेश्चन एवरेज होने से आपका 55% स्कोर और आईएएस बनना तय हो जाता है. लेकिन सारे क्वेश्चन एवरेज होने से आपका लिस्ट में भी स्कोर आएगा, दैट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. नाम आएगा, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. Have a very deeper understanding of issue. I will give you a very good example of UPSC asked question, और दोनों क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं, एक बहुत पुराने जमाने में, एक recent times के अंदर. First, what is the meaning of deeper understanding an issue? Take an example. Suppose if I ask you this question, highlight the policy of Ashoka's Dhamma. क्वेश्चन यही है, highlight the policy of Ashoka's Dhamma. बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, 1998-90s के अंदर का क्वेश्चन है ये, जहां पे ऐसे क्वेश्चंस थे that merely they asked you the policy of Ashoka's Dhamma, and you can actually write that in 300 words by highlighting, okay, the policy of Dhamma largely was, in order to build up the integration, so on and so forth. We are not here to discuss the answers. आज के टाइम पे वो कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है पता है? Ashoka's policy of Dhamma was the reason behind the fall of Ashokan Empire. Critically analyze. I'll repeat the question. Ashoka's policy of Dhamma was the cause behind the fall. Was the cause behind the fall of Ashokan Empire. Critically analyze. अब होता क्या पता है? आपने धम्मा पढ़ा स्पेक्ट्रम से, या फिर किस आर एस शर्मा से, स्पेक्ट्रम में तो नहीं होगा, आर एस शर्मा एंशिएंट इंडिया की, आपने धम्मा पढ़ा, खत्म. उसके स्क्रिप्चर्स कहाँ मिले, या इंस्क्रिप्शंस कहाँ मिले, फलाना किसने बनाया, फलाना ढिमकाना किसने बनाया, खत्म हो गई. क्यों? आपको लगता है पीटी में आएगा, खत्म यार, पीटी के लिए मुझे फैक्ट जानने थे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट. व्हाट इज द क्वेश्चन व्हिच इज बीन आस्क्ड इन मेंस? क्रिटिकली एनालाइज. जो आर एस शर्मा की किताब में खुद ने उन्होंने बताया हुआ है कि धम्मा वाज वन ऑफ द मेजर रीजन बिहाइंड द फॉल ऑफ द अशोकन एम्पायर, लेकिन आगे वर्ड ऐड कर दिया क्रिटिकली एनालाइज. तो मतलब इसके अगेंस्ट में जाके बात करो. वही आर एस शर्मा अगर किसी ने बहुत अच्छे से पढ़ी है समझ के, उसी आर एस शर्मा में 4 रीजन और दिए गए हैं कि धम्मा वाज नॉट जस्ट द पॉलिसी व्हिच लेड टू द फॉल ऑफ अशोकन एम्पायर, देयर वर बिसाइड दिस सेवरल अदर कॉजेस. धम्मा से जरूर वो नॉन वायलेंट पॉलिसी अपनाते हैं, लेकिन नॉन वायलेंट पॉलिसी वाज नॉट द मेजर फैक्टर फॉर द फॉल, इट वाज ओनली वन ऑफ द फैक्टर. लिखना आंसर में ये था, लेकिन कई लोग क्या लिखेंगे, बिकॉज ऑफ द हाफ रीडिंग और सिर्फ धम्मा पढ़ लिया तो वो धम्मा पे लिखना स्टार्ट करते हैं. हाफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन, completely wrong understanding or completely wrong presentation of your answers. So please, a sincere request, just like an elder brother to all of you, is this:
मेक श्योर कि जो पढ़ा बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग से पढ़ा। पिछले 2 साल पहले का एक क्वेश्चन बताता हूँ, व्हाट वुड हैव बीन द फेस ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इफ द गांधी जी वुडंट हैव बीन देयर। कोई किताब में मिलेगा आंसर, सर्च कर लेना, मुझे नहीं मिला। रामचंद्र गुहा में किताब लिखी थी व्हाट इफ गांधी वाज नॉट देयर, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा किताब का नाम, और वो भी उसी साल जिस साल पूछा था ये एग्जाम। सीधा सीधा उस किताब का टाइटल ही आपको क्वेश्चन में पकड़ा दिया, लो लिखो आप आंसर इसके ऊपर। मीन्स व्हाट? अब ये नहीं है कि हमने रामचंद्र गुहा की किताब पढ़नी है, आप रामचंद्र गुहा की आज पढ़ोगे, कल अमर्त्य सेन की उठाएगा, परसों जाके किसी और की उठाएगा। सो इट्स नॉट, देयर इज नो एंड टू आवर रिसोर्सेज देयर। द ओनली एंड लाइज इज कि किसी ने गांधी अच्छी से पढ़ी है, गांधी की आइडियोलॉजी को अगर ठीक ठाक भी समझा, वही स्पेक्ट्रम से, कोई दूसरा सोर्स की बात नहीं कर रहा हूं, देन ही इज एबल टू अंडरस्टैंड कि ओके गांधी की आइडियोलॉजी ये थी, गांधी साहब आए तो मास मूवमेंट बना, गांधी जी नहीं होते तो उससे पहले रेवोल्यूशनरी मूवमेंट था। इसका मतलब एक पार्ट तो हमें दिखता है कि कहीं ना कहीं वायलेंट होता मूवमेंट, दूसरा मतलब इंडिविजुअल हीरोइज्म होता, तीसरा आइडियोलॉजिकली बेस्ड होता, चौथा अगर फ्यूचर में भी हम देखते कि कहीं ना कहीं हमारा पॉलिसी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गांधी वैल्यूज रिफ्लेक्ट करता है, वो नहीं करता, और शायद ये फ्रीडम लॉन्ग लिव्ड नहीं होता, बिकॉज कहीं दूसरी रेवोल्यूशन फिर होती, कोई दूसरा पावर स्ट्रगल फिर चलता, लेकिन नहीं चला। क्यों? बिकॉज ऑफ द वेरी कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वैल्यूज ऑफ गांधीज, established not only in the constitutions but also established in our genes over a period of time because of the socialization process undertaken by our institutions, families and other mechanisms. So please make a point very clear. आंसर ऐसा लिखना है कि ओपन एंडेड, डोंट गो इनटू द एग्जामिनेशन विद अ माइंडसेट कि गांधी मतलब मैं सीधा गांधी का वो कोई पेज नंबर याद करूंगा। ओपन अप योर माइंड, कनेक्ट द थिंग्स, कनेक्ट द डॉट्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। सर बोलना बहुत आसान है, कनेक्ट द डॉट्स, हाउ वी डू इट, डोंट वरी, आई गिव यू अ सॉल्यूशन। एक हफ्ते में अगर कनेक्टिंग ऑफ द डॉट्स नहीं हो गया, मैसेज मी अप, आई विल रिजाइन फ्रॉम द एकेडमी एंड आई विल स्टॉप टीचिंग एट ऑल। व्हाई? बिकॉज आई नो दिस प्रोसेस विल वर्क, बट at the end first let's के पहले क्या focus करना है। So first point you should understand, the solution is always intensive studies, never extensive studies. Make a point very clearly. अगर जो चीज आपको नहीं समझ में आ रही है, आप उसके ऊपर कितनी भी superficial studies कर लो, UPSC is not going to give you marks. Understand, it's not an examination of graduation where you will write anything and UPSC will give you marks for anything. Or else, if this would have been the case, 55% would not have been the topper score. There should have gone to 89, 90 and like Delhi University 99% जो नहीं जा रहा है। इसका मतलब कुछ भी लिखने से नहीं मिल रहा है। एक बार यूपीएससी की नोटिफिकेशन डैफ फॉर्म पढ़ने से पहले रीड करना, और जहां पे आप सिलेबस चिपकाते हो ना, मैथ चिपकाते हो ना यार, आई ऑलवेज फील दीज आर आवर फॉर्मेलिटीज यार। इससे बेटर है यहाँ पे चिपकाओ, दीवार पे चिपकी हुई चीजें कितनी बार रेफर होती है, मैं भी स्टूडेंट रह चुका हूँ, मैंने भी चीजें की है। वो कॉपी सामने चिपकाना कि यूपीएससी का रिक्वायरमेंट क्या है, उस नोटिफिकेशन में क्लियरली बोलता है यूपीएससी का रिक्वायरमेंट that they are largely looking into the quality of the answers, not the words or the quantity. लिखा हुआ है, पढ़ो एक बार नोटिफिकेशन, नहीं पढ़ना है बिकॉज वो क्या मैटर करता है यार, हमको सब कुछ पता है। इट्स नॉट दैट। एक बार देखोगे तो you'll realize over a period of time how you should approach any of your questions or answers. Second thing, beside this, the second point which I actually came out with my own understanding was regular effective writing. I think all of you who are present here, 18 of us including me, we know very well कि यूपीएससी के अंदर सबको अच्छे से पता है रामबाण है लिखना। बट प्रॉब्लम मेरी एक चीज आती है, लिखना इंपॉर्टेंट है या इफेक्टिवली लिखना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमेशा मैं वर्ड यूज करता हूँ। लास्ट सेमिनार, एक और सेमिनार मैंने आपकी हॉस्टल में भी लिया था, उधर भी मैंने बताया था कि इफेक्टिव राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे studying is important, not reading is important for civil services. Effective writing is more important, not just writing is important. I have a personal examples front of me, and you people also might have those examples from your own life or from your seniors or juniors understanding that many people I have seen join multiple test series. 3 साल से टेस्ट सीरीज लिख रहे हैं, 4 साल हो गए, बहुत अलग अलग तरीके से ट्राई किया लिखना, और डेली 2-2 आंसर लिख रहे हैं, 3-3 आंसर लिख रहे हैं, लेकिन एक रत्ती भर का भी इंप्रूवमेंट उनके आंसर्स में नहीं दिखाई देता। क्यों पता है? क्योंकि वो लिख नहीं रहे हैं, वो अपने आप को साइकोलॉजिकली सेटिस्फाई कर रहे हैं कि हम डेली लिखते हैं। रियलिटी में क्या होता है, 5 टेस्ट कायदे से कोई लिखे, 5 टेस्ट कायदे से कोई लिखे, आई हैव अ फर्म फेथ कि उसकी राइटिंग स्किल इंप्रूव हो जाती है। तुम लोग 50 टेस्ट लिखाते हो फिर भी नहीं हो रही है। क्यों? बिकॉज आपका गोल राइटिंग में क्या है पता है? In order to complete the paper and finish that, okay, I have written the answers on these all topics and I am done with it.
यू नेवर ट्राई टू रियलाइज, कभी सोचा टीचर ने जो ओपिनियन दिया कि नेक्स्ट टेस्ट के अंदर मैंने वो मिस्टेक नहीं की, कभी देखा कि ओके जो फर्स्ट लेसन में मिस्टेक्स की टेस्ट में वो मैंने सेकंड में कभी रिपीट नहीं की. बिलीव मी, आई विल टेल यू माय पर्सनल एग्जांपल्स. 2011 I joined 3 test series for sociology. ठीक, these, and there were 2 test series which I joined for GS. I will not recommend you to do that. Understand, पहले पूरी चीज कंप्लीट होने देना. 2 टेस्ट सीरीज फॉर GS, और ऐसे के लिए मुझे कुछ ज्यादा वो करना नहीं पड़ा था बिकॉज ऐसे वाज क्वाइट ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग देयर. अब मैंने हुआ ये कि ऑलमोस्ट एवरी डे आई वाज राइटिंग 1 टेस्ट. मतलब पूरे जो मेंस का टाइम आता है पीटी के बाद, हर दिन मैं एक टेस्ट लिख रहा था. आई यूज्ड टू स्टे इन मॉडल टाउन व्हिच इज अप्रोक्सीमेटली 12 किलोमीटर्स फ्रॉम राजेंद्र नगर एंड द इंस्टीट्यूशंस वर हियर. आई यूज्ड टू ड्राइव माय व्हीकल, कम हियर, राइट एन आंसर, गो बैक. किया क्या, लेकिन मैंने एक चीज, मेरी राइटिंग बहुत इंप्रूव हुई वहां से लिटरली. क्यों? सोशियोलॉजी से मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और मैं सोशियोलॉजी में एक रत्ती भर का भी स्पेस खाली नहीं छोड़ना चाहता था. आई वांटेड टू एक्सपर्टाइज दैट इन एवरी फेसेट, एवरी पार्ट ऑफ इट. इन दिस राइटिंग बस एक पॉइंट अपने आप को क्लियर किया था. माय गोल इज नॉट टू कंप्लीट द पेपर. सेकंड, माय गोल इज नॉट टू जस्ट राइट एवरीथिंग व्हिच आई नो दैट, अटेम्प्ट द क्वेश्चंस व्हिच आई रियली डोंट नो. तो अगर मैंने विजन के अंदर हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म अटेम्प्ट किया है तो मैं हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का क्वेश्चन दूसरी टेस्ट में कभी अटेम्प्ट नहीं करता था. क्यों? इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम. मुझे टीचर से शाबाशी नहीं लेनी है मार्क्स लेके यार, मुझे यूपीएससी क्वालिफाई करना है. द पॉइंट इज दिस. सो आई नेवर रोट दैट, चाहे मुझे पेपर में एक क्वेश्चन छोड़ना पड़े. क्यों? आई न्यू द टाइम इज वेस्टेड देयर बिकॉज आई हैव ऑलरेडी रिटन, आई हैव अंडरस्टूड द मिस्टेक्स मेड, आई हैव लर्नड फ्रॉम इट. व्हाट इज द पॉइंट ऑफ अगेन राइटिंग द सेम आंसर एंड जस्ट गेटिंग गुड, ओके 10 में से 9 आ गए या 8 आ गए या 7 आ गए. इट्स नो पॉइंट. हर क्वेश्चन में मैंने वो अटेम्प्ट किए जो मुझे आते ही नहीं थे, जो मुझे it was something which I was not good at it. Why? The reason was कि मेरा fear उस नहीं आने वाले टॉपिक से निकल जाए. और psychology theory says this, writing 1 time is equal to reading 10 times. So I made sure कल अगर ये क्वेश्चन आता है यूपीएससी के अंदर तो एटलीस्ट मुझे बेसिक स्ट्रक्चर तो पता चल जाएगा आगे जाके कि इसको अटेम्प्ट कैसे करना है. So I always focused on effective writing. Second, एक टेस्ट कई बार मैंने 1.5 घंटे में लिखा है क्योंकि जो आते थे मैंने नहीं लिखे. उधर आते थे का मतलब डिसीजन कैसे लिया, दूसरी टेस्ट सीरीज में लिखा है और यहाँ पे मैंने छोड़ दिया वो. दूसरी चीज, कई टेस्ट मैंने 4.5 घंटे बैठ के इंस्टीट्यूशन में लिखे हैं कि सर 3 घंटे होता है, ये 4.5 घंटे लिखे. क्यों? मैंने एक अपने आप से प्रॉमिस किया था कि ये टेस्ट इज समथिंग व्हिच आई एम गोइंग टू लर्न एंड स्टडी बिकॉज और टाइम नहीं है मेरे पास पढ़ने का. तो जो क्वेश्चन मैं लिखता था ना, आई यूज्ड टू राइट इट इन सच अ मैनर कि 20-15 मिनट तक मैं उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्म करके टेस्ट सीरीज में लिख देता. थैंक्स टू दोस टीचर्स हु एक्चुअली गिव मी अ टाइम टू राइट फॉर 4.5 आवर्स. वो आज भी देते हैं टीचर्स, नो इश्यूज, बिकॉज दे डोंट हैव एनी इश्यूज विद दैट. अब जब टाइम था तो मैंने पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, रिकलेक्ट किया और फिर लिखना चालू किया. क्यों? क्योंकि मैं कभी भी ये नहीं चाहता था कि दिवाकर बोथरा शुड गेट इनटू अ सर्कमस्टेंसेस कि यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा और 3 दिन के बाद सेम क्वेश्चन आया तो दूसरा आंसर निकल रहा है. मेरा फायदा क्या उस क्वेश्चन को लिखने का जब मैं उसको रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पाऊंगा कहीं आगे. So when I used to analyze, brainstorm and make a proper structure of a particular answer, that structure used to just damn fit in my brain to such an extent कि next time में वो क्वेश्चन आया exact recopy मैं present कर सकता हूँ if I want it, or I can play with it and modify the time and the place I like it. So this should be the goal from writing. You should write in such a manner that you are in a capacity to reproduce almost the same answer whenever the time requires. Or else आज अच्छा लिखना है, कल वो हमें 2 दिन के बाद हमने क्या आंसर लिखा था याद ही नहीं आ रहा है, तो रियलिटी में आपने कुछ सीखा उस आंसर को लिख के. आई पर्सनली फील सॉरी फॉर दैट कि शायद नहीं सीखा. ये चीजें आज से बंद करना. आज से जो लिखो उस चीज को हमेशा दिमाग को क्लियर कर लो कि आई नीड टू रिप्रोड्यूस इट. सो इफ आई जस्ट राइट इट, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प मी आउट इन माय एग्जामिनेशंस. सो मेक अ पॉइंट वेरी क्लियर. Effective writing is very crucial. Effective writing कैसे करनी है, analysis कैसे करना है, I'll give you the solution part. पहले करना क्या है वो देख लो आप. The third most important point which I felt was developing of analytical abilities. Can anybody, एक simple सा question है and I really want everybody to answer this question here. Can anybody define democracy? एनालिटिकल एबिलिटीज मैं बताता हूँ कैसे होती है एनालिटिकल एबिलिटीज डेवलप, बिकॉज ये सबसे फियरसम एस्पेक्ट है एंड दोस पीपल हु लैक दिस स्पेशली इन देयर ऑप्शनल्स एंड जीएस दे आर रियली गोइंग टू फेस अ वेरी टफ टाइम विद देयर मेंस. इट विल बी अ वेरी बिग फाइट देयर. डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट बाय डिस्कशन. गुड इनफ. Okay, योगेश, your answer. एक सेकंड, योगेश का मैं बता. Okay, next popular sovereignty.
empowerment of people. Oh wow, yeah, empowerment itself is something which is open-ended. Of the people, by the people, for the people. What a great answers. अब understand, ये आज आपका लाइफ लेसन होना चाहिए यूपीएससी के लिए. Okay, these are the answers which I have read. अब understand, किसी ने मुझे बोला democracy is by discussion. Is Russia a democratic society? Is Russia a democratic society? It is by government, it is by elections, and it is by, obviously, elections हो रहे हैं, regularly representative increase कर रहे हैं, but it is still not considered as a democracy. Next, पाकिस्तान क्या डेमोक्रेसी है फिर? अगर आपका पॉपुलर सॉवरेनिटी वाला पार्ट लूं या फिर वो डिस्कशन वाला पार्ट लूं, हो क्या रहा है? अगर आपकी डेफिनेशन से जाऊंगा ना, तो मुझे हर सोसाइटी ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं. और लेट्स टेक एन एग्जांपल, इज ईरान अ डेमोक्रेसी? लॉया जिग्रा लास्ट ईयर हुआ था ना, सॉरी इसी साल हुआ था ना, लॉया जिग्रा बड़ी सी कॉन्फ्रेंस ऑफ एल्डर्स इन ईरान. क्या हुआ? सॉरी अफगानिस्तान, आई एम सो सॉरी, अफगानिस्तान. क्या हुआ उसके अंदर? तो वो भी तो डिस्कशन था. इसका मतलब वो डेमोक्रेसी है. अब प्रॉब्लम क्या है पता है? आप सबको पता है एनसीईआरटी पढ़नी है, आप सबको पता है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल. दैट इज नॉट अ डेफिनेशन, दैट वाज मियरली एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ पर्टिकुलर प्रेसिडेंट. दैट्स इट. प्लीज मेक इट वेरी क्लियर. अब्राहम लिंकन की अंडरस्टैंडिंग डेमोक्रेसी नहीं है. इट इज हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी, दैट ही, this was the way he defined it, and it was not he defined it, this was in reality in a similar word said by Mosca in the earlier times. और उसको कहीं ना कहीं उस तरीके से यूज किया था उन्होंने. आई एम नॉट हियर के मुझे मेरा कुछ आइडिया दिखाना आपको. ओनली पॉइंट इज दिस, किसी ने अगर सिंपल पॉलिटिकल थियरी डेमोक्रेसी की एनसीईआरटी पढ़ी होती ना, तो आप बताता हूँ डेफिनेशन क्या होती है. अंडरस्टैंडिंग इतनी ओपन हो, इतनी क्लियर हो कि कोई भी क्वेश्चन नहीं बटे उसमें. डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम which provides an opportunity to regularly change the representatives by conducting free and fair election. अब वर्ल्ड के अंदर क्लियरली बता सकते हो कौन सा डेमोक्रेसी है इस डेफिनेशन से. न पाकिस्तान इधर फिट होता है, न रशिया इधर फिट होता है, न चाइना इधर फिट होता है. बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ सोसाइटीज फिट होगी यहाँ पे. आई रिपीट, डेमोक्रेसी इज अ पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस वेयर द रिप्रेजेंटेटिव्स आर चूजन बाय पीपल through regularly through free and fair election. मेरी क्रिएशन नहीं है, एनसीईआरटी में थी यार, आपने नहीं पढ़ी. मेरी प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम. यस, आपकी प्रॉब्लम. एग्जामिनर की प्रॉब्लम, उसकी प्रॉब्लम नहीं है. सिंपल सा डेमोक्रेसी डिफाइन करने में अगर हमको इतना डिफिकल्ट हो रहा है या फिर एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं आ पा रही है, तो डू यू रियली थिंक दैट विल इट एनीवेज एनी डे you'll able to develop analytical skills? Suppose मैं ये पूछना चाहूँ कि how did the coronavirus largely led to the change in international relations of India with the other countries? कितना dead analytical question होगा. कोरोना वायरस के कंटेक्स्ट में इंडिया की इंटरनेशनल रिलेशनशिप चेंज कैसे हुई, उसके ऊपर आप एनालाइज करके बताओ. जब हमें डेमोक्रेसी की ठीक से अंडरस्टैंडिंग, क्यों हमने किया क्या है पता है? वी हैव स्टडीड द थिंग्स अप, वी हैव फ्रॉम पेपर, फ्रॉम बुक्स, फ्रॉम समवेयर एल्स, फिट कर ली दिमाग में, कभी अप्लाई नहीं किया. द नेक्स्ट पॉइंट, प्लीज, दो चीज मेंस में अगर डेवलप करते हो, एनालिटिकल स्किल्स और इफेक्टिव राइटिंग प्रैक्टिस बिफोर द एग्जामिनेशन, टाइम मैनेजमेंट इन द एग्जामिनेशन विल मियरली अ केक वॉक. ऑटोमेटिकली हो जाएगा. लेकिन आप क्या करते हो? टाइम मैनेजमेंट को प्लान करते हो एग्जामिनेशन के ऊपर, वाली दोनों चीजें डेवलप ही नहीं है, तो वो टाइम मैनेजमेंट कभी प्लान ही नहीं हो पाता. मेरा ही एक स्टूडेंट है जो he planned a PT examination in this to such an extent कि हर सेकंड वो कितने हर क्वेश्चन में कितने सेकंड्स देगा. I really said him, you are committing a blunder and you will pay a price for that, and he literally paid a price for that. हर सेकंड में घड़ी देख रहा हूँ तो पूरे 2 घंटे 2 घंटे में 10 मिनट तो कम से कम मेरा घड़ी देखने में चले जाएगा यार. कर क्या रहे हैं हम लोग? सो मेक अ पॉइंट वेरी क्लियर, एनालिटिकल स्किल डेवलप करना उतना इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विसेज के लिए फिलहाल, जितना आपके लिए ऑक्सीजन सांस लेने के लिए, जिंदा रहने के लिए. इफ यू लैक एन एनालिटिकल स्किल एबिलिटीज, कम से कम 12 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो एनालिटिकल आएंगे. 8 क्वेश्चन में आप शायद बहुत उम्दा परफॉर्म कर लो, बट 8 क्वेश्चन आपको सिलेक्शन की तरफ नहीं ले जाएंगे. My goal is not to demotivate. My goal is to tell you the fact which are really mattering in the examination to qualify or not to qualify. Determines your fate. If you just walk in 2 months, I have a personal assurance आप improve कर सकते हो. और 2 मंथ तो बहुत दूर है. I always take a short time ताकि स्टूडेंट को जल्दी रियलाइजेशन हो जाए. हफ्ते भर में दोनों चीज इंप्रूव हो सकती है, बट एक चीज करनी पड़ेगी. ठीक, अब दैट चीज आई विल टेल यू. अब ये थी एग्जाम से पहले 3 चीज. इफेक्टिव राइटिंग तुम्हें आज से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी, एनालिटिकल स्किल डेवलप करनी है, कैसे करनी है आई विल टेल बोथ ऑफ देम,
And thirdly, quite obviously, understand every issues in a very deeper manner rather than just merely glancing through it. Stop that glancing wala part and start understanding in a more matured manner where you can actually understand the topic rather than just having a superficial understanding of it. इसके बाद जो मैटर करता है एग्जामिनेशन के अंदर, कि आप एग्जामिनेशन के अंदर, सॉरी देयर इज सम डिस्टर्बेंस हियर इन द रोड साइड, sitting in the institution and it's lying on the main road. Just give me 10 seconds. ठीक है. The second part which you should know is examination hall में जाने के बाद क्या क्या करना है. सबसे पहला चीज आपको ध्यान रखना है एग्जामिनेशन के अंदर, जब क्वेश्चन पेपर आ जाए, क्वेश्चन पेपर से पहले, I mean when you are entering into the examination hall, you should always remember one thing. मेरे सीनियर ने मुझे बोला था जब मेरे थर्ड अटेम्प्ट में भी सिलेक्शन नहीं हुए थे इंटरव्यू के थ्रू, तो he said me this, but obviously that did not matter much to me because मेरा मेंस क्वालिफाई हो रहा था, लेकिन मेरा मेंस में हाँ एक सब्जेक्ट में स्कोर कम रह रहा था कॉमर्स के अंदर उस टाइम पे. He said me one thing, Diwakar, you know what is the difference between the person who gets into the final list and the person who is not able to qualify or enter into the final list? Is only one thing which he felt, that the person who is getting finally selected has decided the questions which he is going to attempt before entering the examination hall. एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाने से पहले उसने पहले डिसाइड कर लिया कौन से टॉपिक में अटेम्प्ट करूंगा और किस तरीके से मैं अटेम्प्ट करूंगा. एग्जाम्पल से समझाता हूं. कभी होटल गई हो, ऑब्वियसली सब कोई रेस्टोरेंट ने होटल्स या रेस्टोरेंट्स या मोटेल्स विजिट किया होगा सबने. अंडरस्टैंड, इफ आई हैव टू हैव अ पनीर टिक्का इन अ रेस्टोरेंट, how much time it takes? I want to message it in the chat box. यार सरमन मत बताओ, मैं यहाँ पे कोई प्रवचन नहीं दे रहा हूँ. प्लीज टेल मी क्लियरली कितना टाइम लगता होगा किसी रेस्टोरेंट में किसी पनीर टिक्का को ऑर्डर करने में और आने के लिए? शायद 10, 15, 20 या 25 मिनट शायद. आई थिंक बहुत ज्यादा हो गया वो भी. ठीक, अगर वहीं पे अगर मुझे घर में पनीर टिक्का बनाना हो तो कितना टाइम लगेगा? शायद पूरा दिन, उसकी पूरी दिन प्रिपरेशन चलेगी. राइट, सेम तरीका होता है एग्जामिनेशन का. होता क्या है कि आप होटल वाला पर्सपेक्टिव लेके चलो एग्जामिनेशन के अंदर. आप ऑलरेडी रेडीमेड स्ट्रक्चर्स और अटेम्प्ट्स टॉपिक्स डिसाइड करके रखो कि वुमेन का आएगा तो भैया एम्पावरमेंट का आएगा तो ऐसा ऐसा अंडरस्टैंडिंग है, वायलेंस का आएगा तो ऐसा ऐसा अंडरस्टैंडिंग है, इनइक्वालिटी का आएगा तो कुछ ऐसा अंडरस्टैंडिंग है, इंडिया श्रीलंका आएगा तो कुछ ऐसा ऐसा टॉपिक है. हर टॉपिक का एक स्टैंडर्ड बना के रखो. हर का तो पॉसिबल नहीं है. मेजॉरिटी जो आपको लग रहा है करंट अफेयर्स में थे या आपके इंट्यूशन है इंपॉर्टेंट है, make a structure and make the structure so bloody strong that you are not going to leave that topic. ऐसा नहीं हो फिर इंडिया श्रीलंका का क्वेश्चन आया और आपने वो छोड़ दिया. क्यों? ये क्वेश्चन 8 मिनट नहीं लेगा आपको आंसर राइटिंग में. एक क्वेश्चन को 8 मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा अगर मुझे 20 के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं ऑन एन एवरेज. 8 जब किसी क्वेश्चन के स्ट्रक्चर्स रेडी है, एनालिसिस रेडी है, it will take hardly 3 to 4 minutes in order to answer that 150 to 250 words question. क्यों? अगर पर मिनट 160 वर्ड्स भी अगर मैं पकड़ूं तो शायद 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए मुझे उस आंसर को अटेम्प्ट करने में. हुआ क्या, ऐसे 5 क्वेश्चन अगर तुम्हारे आते हैं, 5 क्वेश्चन में तुम 3 मिनट भी बचाते हो, 15 मिनट तुम्हारा सेव हो रहा है. ये 15 मिनट तुम वहां पे यूज करना जहां पे तुम रेडी नहीं थे उन क्वेश्चंस के लिए कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन भी आ जाएगा शायद. So make a point before examination hall today, from today onwards, make a list of the topic which you are strong at and which are probable to be asked. एक स्टैंडर्ड 150 वर्ड 250 वर्ड के नोट बनाओ. रिसर्च मत करना कि विजन 365 पूरी जमाने से पढ़ रहे हैं हम, या फिर सेमिनार मैगजीन जमाने से पढ़ रहे हैं, ईपीडब्ल्यू पढ़ रहे हैं, योजनाएं कुरुक्षेत्राएं पढ़ रहे हैं. नहीं, 250 वर्ड में उस टॉपिक को खत्म करके इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन विद फैक्ट्स बनाओ. आया सीधा छाप के आना है. एटलीस्ट नियर अबाउट, रट्टा नहीं मारना उसका. एक फ्रेमवर्क रेडी रखना है. क्यों? वैसे के वैसे क्वेश्चन आने वाला नहीं है. वो क्वेश्चन ट्विस्ट होगा, क्रिटिकली एनालाइज हो सकता है, डिस्कस हो सकता है, एनालिसिस हो सकता है. उसके लिए तुम्हें वही कंटेंट यूज करना है बट इन अ डिफरेंट मैनर, जहां पे कभी इंट्रोडक्शन कंक्लूजन में जा सकता है या कंक्लूजन वाला पार्ट बॉडी बन सकता है. आप एक ever ready to use material बना के रखो कुछ टॉपिक्स के अंदर, so that when you enter the examination hall it's not difficult. मैंने बनाए थे कुछ टॉपिक्स, जैसे स्पेशली मैंने एसेज में बनाए थे. ये वुमेन वाज द समथिंग व्हिच आई बिलीव्ड और हेल्ड कि इन दोनों में से मेरे टाइम में एक ही ऐसा लिखना होता था, अप्रोक्सीमेटली 1800 वर्ड के आसपास. ठीक, वर्ड लिमिट नहीं थी. नॉर्मली 1500-1800 वर्ड के बीच में वो ऐसे लिखते थे लोग. हमेशा बनाया था कि इन दोनों पे कोई भी आएगा मैं अटेम्प्ट करूंगा, तुम्हें जो पूछना पूछ लो. It's your choice. You ask me anything on women's or health, I will write an essay on that. क्यों? कंटेंट इस तरीके से तैयार किया था. तुम किसी भी डायमेंशन से पूछो, I am ready to attempt that essay. अब हुआ क्या,
उधर मेरी इजीली रिकवर हो। और दूसरी चीज, मैंने स्पेसिफिकली ये स्टैंडर्ड बनाए थे ऑप्शनल के अंदर, यूरोपियन मॉडर्निटी आएगा तो ये ढांचा होगा आंसर का, मैक्स वेबर का आइडियल टाइप आएगा तो इस तरीके से अटेम्प्ट करूंगा, वुमेन ऑन वायलेंस ऑन वुमेन आएगा तो इस तरीके से अटेम्प्ट करूंगा, रूरल एग्रेरियन स्ट्रक्चर आएगा तो इस तरह। आई मेड ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक के स्टैंडर्ड के ऐसे आएगा तो ऐसे होगा। इमाइल डरकाइम का सेक्रेड एंड प्रोफेन आया, 3 मिनट में मैंने आंसर खत्म कर दिया था वो पूरा का पूरा, एंड उस टाइम 30 मार्क का क्वेश्चन आता था। यस आई डिड दैट, क्यों? फिट था स्ट्रक्चर, सीधा सीधा। और हर क्वेश्चन नहीं आएंगे, ऐसे ध्यान रखना। 3 क्वेश्चन भी अगर आते हैं, 5 क्वेश्चन भी अगर आते हैं, आपकी 15 से 10 मिनट का सेविंग हो रहा है टाइम। और सिर्फ टाइम सेविंग नहीं है दोस्तों, दूसरी चीज क्या है, उस क्वेश्चन की क्वालिटी आपकी क्या होगी? अनबीटेबल। क्यों? तुरंत सोच के नहीं बनाया है, ऑलरेडी बढ़िया से एनालिसिस करके मैंने आज बनाया था। जब मुझे 2 घंटे लगे, उस दिन मुझे सिर्फ 2 मिनट लगेंगे उसको लिखने में। और इमेजिन आज आपके पास एनालिसिस का टाइम है, एग्जामिनेशन में नहीं रहेगा। 8 मिनट्स के अंदर you need to read the question, you need to understand the question, you need to brainstorm the content, you need to frame the structures, and you finally have to write। 5 चीजें करनी है। 8 मिनट को 5 से भी डिवाइड करो तो आपको ठीक ठाक समझ लो कितना टाइम मिलेगा। and that is not sufficient, and that is really not sufficient कि 1 मिनट या 1.5 मिनट में मैं लिख दूंगा, not possible। so understand, आपकी एनालिसिस स्किल डेवलप होनी बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ, क्योंकि वहां पे एनालिसिस करने का टाइम नहीं है, सडनली जाके ब्रेन को झोंक दोगे एनालिसिस के लिए और पूरे साल तुमने एनालिसिस ही नहीं की, डू यू रियली थिंक यू विल एवर एबल टू एनालाइज? नो, we'll develop that, we can develop that in 2 months, I have a firm faith on it। तो प्लीज एग्जामिनेशन में एंट्री करो, उससे पहले दिमाग में चीजें स्टैंडर्ड सेट होनी चाहिए। ये पेपर में ये अटेम्प्ट करना है, ये टॉपिक आएगा तो अटेम्प्ट करना है, ये टॉपिक आएगा टच भी नहीं करना है। कुछ टॉपिक्स होते हैं वीक। सी सेट 2012 में पहली बार देना पड़ा था, सी सेट का स्कोर काउंट होता था। मैथ्स मेरा एक्सेसिवली वीक हुआ करता था डिस्पाइट बीइंग अ कॉमर्स बैकग्राउंड, लेकिन कॉमर्स और मैथ्स का कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, था वीक, एक्सेप्ट किया मैंने। लॉजिकल रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, हर चीज इतनी स्ट्रांग मारी कि 80 में से 72 क्वेश्चंस राइट थे एज पर यूपीएससी, ठीक। और 2 क्वेश्चन मैथ्स के आए थे, सीधा प्रणाम करके छोड़ दिया, करना ही नहीं है। क्यों? मुझे पता है अगर मैं करने जाऊंगा मेरा टाइम भी वेस्ट होगा और बाकी प्रेशर भी आएगा और बाकी क्वेश्चन और खराब हो जाएंगे मेरे। So I knew what I have to do. That is most important thing when you enter into the examiners, कि आप क्लियर हो के करना क्या एग्जामिनेशन में, पेपर आने से पहले, आने के बाद नहीं। आने के बाद तो क्लियरिटी खत्म होने लगती है इनफैक्ट। अब जब आपके सामने पेपर आया तो सबसे पहली चीज तुम्हें जो करनी है वो ये, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन रियली वेल। अल्बर्ट आइंस्टाइन को हमेशा याद रखना, उन्होंने इतना बोला कि 1 घंटे में 55 मिनट में सिर्फ क्वेश्चन बनाने में, इशू का एक क्वेश्चन फ्रेम करने में लगा दूंगा, क्योंकि उस क्वेश्चन से मुझे इशू समझ में आएगा। इशू समझ में आ गया तो 5 मिनट में सॉल्यूशन रेडी है। एक्सक्यूज मी। सो अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन बिकम्स इंपॉर्टेंट। अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन के लिए एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। लेट्स टेक, मैंने एक प्रीवियस क्वेश्चन का ये एग्जांपल उठाया है। डेमोग्राफिक डिविडेंड has been celebrated in India। हो सकता है एग्जैक्ट वर्ड नहीं पुट अप करूं, but I'll just use some words there। Demographic dividend has been celebrated in India, but we are not conscious about the but we are not, एक सेकंड में एग्जैक्ट क्वेश्चन बता देता हूं क्या था। हाँ, demographic dividend has been celebrated by India, but the underskilling component has not been thought of। क्या चीज पूछ रहा है क्वेश्चन? that we are celebrating demographic dividend in India। exactly put up नहीं किया मैंने, roughly लिखा था because I could not make all the notes to tell you here because that was waste of time। demographic dividend has been celebrated in India, but the underskilling of the people, of the population has not been taken care of। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, सिर्फ इतना बता दो। What is the demand of the question? Guys, anybody? Hello? अरे सीधा शॉर्ट में लिखो, मुझे समझ में आ जाएगा यार, इतना तो समझ में आ जाएगा। Without skill, it can lead to demographic disaster। Perfect। मतलब अब होता क्या है, अंडरस्टैंड, अभी तो सर्कमस्टेंसेस है जब मैं आपको ऑब्वियसली कैच करने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप बड़े कॉन्शियस होकर चीजें समझ रहे हो। एग्जामिनेशन के अंदर सपोज ये क्वेश्चन 70वां नंबर आता, जब आपके पास शायद 4-5 मिनट या 10 मिनट बचे एग्जामिनेशन खत्म होने के अंदर, होता क्या, अच्छा डेमोग्राफिक डिविडेंड, ठीक है स्टार्ट किया, आप आगे वाला कंपोनेंट भूल ही गए। क्यों? टाइम नहीं है, प्रेशर है, स्ट्रेस है। और कुछ भी हो जाए, प्रॉमिस टू योरसेल्फ,
क्वेश्चन को 2 बार पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा मैं, वॉट एवर में इट कॉस्ट मी, चाहे मेरा एक क्वेश्चन छूटे। क्यों? दूसरा तो छूट ही रहा है, सो छूट रहा है, ये भी तुम छोड़ने लायक ही करके आ रहे हो उधर। क्यों? यू हैव वेस्टेड योर टाइम इन राइटिंग नॉनसेंस इन दीस आंसर्स बिकॉज़ यू हैव नॉट रेड द एंटायर क्वेश्चन एट ऑल। क्यों? क्वेश्चन पूछ रहा है स्किल के बारे में, तुम लिख रहे हो डेमोग्राफिक डिविडेंड में, देखा जा रहा है 80 वर्ड्स तक तो तुम्हारा डेमोग्राफिक डिविडेंड ही खत्म नहीं हो रहा है। स्किल पे कब लिखोगे, कंक्लूजन कब लिखोगे, फॉरवर्ड कब लिखोगे, पता नहीं। डेमोग्राफिक क्यों भाई, मुझे तो यही आता है, मैं तो ये लिख के आऊंगा, तुम मान या नहीं मान। दिस इज नॉट द एटीट्यूड। Understand the point very clearly. None of our loved ones are sitting there to make us qualify the examinations. They are sitting there to stop our qualifications of the examination. Sorry, just to stop our, no need to ensure that we don't qualify. In such circumstances, please make the understanding of question very clear. Second, एक और चीज practically समझो इस चीज को, जो मैंने मेरे अटेम्प्ट में समझी थी। एक एग्जामिनर है, ठीक, डेली, उसे शायद उस टाइम की बात बता रहा हूँ, 600 रुपीज जो मैंने आरटीआई से पता किया था, 600 रुपीज मिलते थे पेपर करेक्ट करने के। ठीक, उस 2000, आप फॉरगेट अबाउट व्हाट एवर द प्राइस, मान लो आज 1000 रुपए मिलते होंगे एक पेपर करेक्ट करने की। These are the people belonging to different universities in their late 50s or early 60s, around there. ठीक, डेली कम से कम 50 से 100 पेपर करेक्ट करते हैं। सर ये स्टोरीज का क्या करना है? समझो, ये स्टोरीज नहीं है, ये लाइफ लेसन्स है जो सीखने में बड़ा जमाना लग जाता है। अब अगर डेली वो 100 पेपर भी, 50 पेपर भी करेक्ट कर रहा है, एक पेपर के अंदर 4000 वर्ड, 50 पेपर के अंदर कितने वर्ड हो गए? अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखोगे 2 लाख के आसपास वर्ड हो जाता है डेली। 2 लाख का, और उसके ऊपर डेली सेम, वो हर क्वेश्चन सेम है, आंसर ऑलमोस्ट सेम है। आप खुद पीटी जब 3rd 4th अटेम्प्ट में देते हो तो सेम चीज पढ़ने में कितनी दिक्कत हो रही है, और आप तो साल भर 6-6 महीने के बाद पढ़ रहे हो, वो सेम दिन पढ़ रहा है वही चीज। ही इज हाईली फ्रस्ट्रेटेड। ही वांट्स कि कोई बंदा आए, क्वेश्चन को सटाक से खत्म करे और कहानी खत्म, ना कि स्टोरीज लिखे। तो जब ये डेमोग्राफिक डिविडेंड, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप क्वेश्चन लिखते हो, जब 80 वर्ड तक डेमोग्राफिक डिविडेंड ही घुमा रहे हो ना, नीचे जाके टिक मारेगा, ऊपर 1 मार्क डालेगा, आगे चले जाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चलेगा क्या आ रहा है, क्या दिया, क्या पढ़ा या नहीं पढ़ा। और कोई इधर भ्रम में है कि यूपीएससी में हर पेपर 3 बार करेक्ट होते हैं, तो आई लिटरली फील ही इज इंटॉक्सिकेटेड। कोई 3 बार करेक्ट नहीं होते हैं पेपर। मैंने आरटीआई खुद लगाई थी, मेरे को कभी रिप्लाई नहीं मिला उनका, दैट इट इज द इंफॉर्मेशन व्हिच दे कैन नॉट क्लोज फॉर द ऑटोनोमस, फॉर मेंटेनिंग द ऑटोनॉमी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। द ओनली रिप्लाई व्हिच आई गॉट इन 2012 व्हेन आई फाइनली कुड नॉट गेट इनटू द लिस्ट, व्हेन आई वांटेड माय पेपर्स बैक। So understand, they are there to weed you out, not to take you in. If you make their work easy, they will make your work of qualifying the examination easy. Bang the buck. सीधा क्वेश्चन आया, hit it with this. Demographic dividend as largely refers to the rise of population of, the population dominating in the youth up to 35 years. In the recent times, it has been seen that India has been dominated by youth populations, but however, the skilling of the Indian youth, as per the report, कोई fact है, has highly been questionable. फर्दर, मतलब उसको इंट्रोडक्शन में मैंने क्वेश्चन का ऑलमोस्ट पूरा पार्ट टैकल कर दिया, उसको समझ में आ गया, बंदा क्वेश्चन समझ गया है, आगे जाके उसका एलॉबरेशन है या कुछ एडिशनल फैक्ट्स है टू प्रूव दैट अप। मींस आई हैव मेड द थिंग ब्लडी क्लियर टू द एग्जामिनर दैट आई नो द क्वेश्चन, आई हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन, आई हैव गिवन यू अ ब्रीफ आंसर in the introduction itself. Now you please read it up. You'll be very fluently reading it. For example, जैसे मैं अभी ये fluently बोल रहा था, that is how your answer should be in the examinations. That will only happen when you properly understand the question. क्वेश्चन को इंट्रोडक्शन में खत्म करना, साइंस, टेक्नोलॉजी और आर्ट तीनों होते हैं। साइंस क्योंकि स्ट्रक्चर, आर्ट क्योंकि तरीका, टेक्नोलॉजी क्योंकि फैक्ट, तीनों चीज होनी चाहिए, तब जाके आंसर इंट्रोडक्शन में डेड एंड हो जाता है और एग्जामिनर को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। जैसे 1921 में भगत सिंह ने क्लियर किया था ब्रिटिश को सेंट्रल हॉल के अंदर, सेंट्रल असेंबली के अंदर, हॉल के अंदर, सेंटर के अंदर बॉम्ब फोड़ के। He made that clear, you made that clear to the examiner as well. Remember 1929 incident. You need to shout and make to the examiner clear, because he is in a mood after studying so many papers not to give you marks, because he is frustrated about so many things read in the same manner of the same questions. First question, things should be taken. Second thing, be very clear of the questions. Second, just 5 to 6 more minutes. Time management. Time management का मेरे पास कोई solution नहीं है सर। टाइम मैनेजमेंट आदमी का तब होता है जब उसकी राइटिंग और एनालिटिकल दोनों ठीक है। टाइम मैनेजमेंट इज एन एंड रिजल्ट।
End result cannot be improved until and unless the process gets improved. If you improve the process, only then the end result is improved. If you just focus on the end result, the process, without focusing on the process, you will never able to manage the time. अब वो दो चीजें कैसे improve की जाती है? Let's take for an example how to improve analytical skill. Guys, गांठ बांध लेना इस चीज को, सिर्फ एक हफ्ते तक करके देखना, या तो 3 दिन के बाद रोना आ जाएगा या 7 दिन के बाद analytical skill improve हो जाएगी. I've been very frank. You people know me if you have attended the sessions, and this is how I say. 3 दिन में या तो छोड़ दोगे या 7 दिन में you will improve. क्या करना है? You just need to brainstorm a particular topic. 2 तरीके बताता हूँ. एक तरीका आसान है, बहुत impactful है, लेकिन What do you do? पूरे दिन आपने जब पढ़ी चीजें, शाम को सिर्फ सिलेबस कॉपी उठाओ, सिर्फ सिलेबस कॉपी, और उस सिलेबस से स्टार्ट करो रिकॉल करना. Do it when you're traveling in a bus, when you're having your lunch or dinner, or when you are just sitting with the friends and you know in a lighter mood. Okay, let's see ये सिलेबस में यार ये क्या पढ़ा है तुमने, बताओ. अच्छा, मैंने इस टॉपिक में अंदर देखो यार, इसके अंदर ये टेक्नोलॉजी इन द एज ऑफ फार्मर्स में मैंने आज ये कुछ पढ़ा, ये कुछ पढ़ा. होगा क्या पता है? Your mind will start recollecting things. जो यहाँ पे रस्ट लगी है by only studying without ever analyzing the things कि how much I have studied and I am able to retain that will start opening up. And if you open up now, only you'll able to use it in the examination hall. If you believe कि अभी मेरी fear, अभी मेरे को डर लग रहा है, तो examination में फिर सीधा सपाट it's like a defeat. डर की बात ही नहीं है उधर, क्योंकि वहां पे डर लगेगा, एक और साल डरना पड़ेगा फिर तुम्हें. मेक अ पॉइंट वेरी क्लियर. अभी जितना इंप्रूवमेंट हो सकता है करो. सिर्फ 10 मिनट शाम को ट्रॉल पे जाते हो, एक वॉक पे जाते हो, डू वन थिंग. शाम को बैठ के आराम से व्हेन यू आर वॉकिंग, टेक योर सिलेबस कॉपी विथ यू. थिंक ऑन जस्ट रिकॉलिंग द थिंग्स व्हिच यू हैव स्टडीड. मैं नहीं बोल रहा पूरा सिलेबस रिकॉल करो. स्पेशली ये यूजफुल होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के अंदर. सिलेबस का कॉपी लेके गए और उस सिलेबस में चलो ये टॉपिक है, ठीक है, इस टॉपिक में मैंने ये पढ़ा है, फलाना ये बोलता है, ढिमकाना ये बोलता है, अच्छा इसकी ये एंट्री होती है, ये अकाउंट होता है, फलाना होता है. रिकॉल थिंग्स. कितना 30 मिनट्स वॉक कर रहे हो, 30 मिनट्स माइंड की भी तो एक्सरसाइज करो. दैट विल स्टार्ट रिकॉलिंग. पहले दिन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, याद नहीं आ रहा. 2-3 दिन में यू विल सी रियली द डिफरेंस. प्लीज friends, do this. Your improvement will be really exceptional in the capacity of analyzing things up. Second, ये वाली एक्सरसाइज मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा बेनिफिट की थी पूरी एंटायर इयर्स ऑफ माय सिविल सर्विसेज प्रिपरेशंस. Every day what we used to do, especially dedicatedly, religiously, मैंने लास्ट अटेम्प्ट में की थी ये वाली चीज. लास्ट अटेम्प्ट मतलब मैंने 2 साल ड्रॉप किया था, तो उस 2 साल के दौरान मैंने ये चीज की थी कि every day after reading for the entire day, after reading for that, I used to sit with a blank paper. स्पेशली मेरे ऑप्शनल के साथ मैंने की थी, और जीएस के भी बहुत टॉपिक्स के साथ मैंने की थी. एक टॉपिक उठाया और उस टॉपिक के हर डायमेंशंस की तरफ सोचा, पढ़ा नहीं, ट्राई किया क्या क्या पढ़ा उसको रिकॉल करना, या फिर सेकेंडली कि कैसे उस चीज को मैं आंसर करता. जैसे फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक अर्बन प्रॉब्लम्स, अर्बनाइजेशन इन इंडिया. सपोज लेट्स टेक एन इशू. सबसे पहले मैं बेसिक से स्टार्ट करता. अर्बनाइजेशन क्या है, factors which led to urbanization, the type of urbanization present today and the type of urbanization present in the Indus Valley, British and other societies. आज और कैसे वो different है. The urbanization के benefits क्या है, urbanization में challenges क्या face कर रही है इंडिया, urbanization के अंदर उस challenges को tackle किया कैसे जा सकता है. कोई न्यूज़पेपर में एग्जांपल पढ़ा कि अमेरिका ने ये किया, जापान ने ये किया, जर्मन, वो मैं उधर लिखता, ब्रेन्स फटाफट लिखता, कोई नोट्स नहीं बनाता यहाँ, जस्ट ए रफ स्ट्रक्चर ऑफ द एंटायर थिंग. हर डायमेंशन जो मुझे पॉसिबल होता करना, बट इन द स्पैन ऑफ 45 मिनट्स. Okay, I think ठीक है. One of my students is actually confused with the class, so that's the reason he was waiting in the room. So understand this कि the point is आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी, और एक 45 मिनट्स ऑफ डेली. आपने स्टार्ट कैसे करना है ये प्रोसेस, आपने स्टार्ट करना है ऐसे कि इनिशियली व्हाट यू डू इज, आज जैसे ट्राई करना गाइस, यू डोंट हैव मच टाइम, कि आज आपने जो पढ़ा शाम को पूरा का पूरा एक व्हाइट शीट में उतारना है मुझे. यू नीड टू पुट इट डाउन कि हेडलाइन से लेके मैंने फाइनली चीज तक जो पढ़ी सब मुझे उतारनी है. So this was what I felt can improve your analysis, because time tested method है, trial and error से सीखी थी चीजें कि थोड़ी सी ट्राई करो, it will definitely help you and it's a worth every penny of your time spent in this exercise. So since these are the things which I really wanted to make you clear
कि एग्जाम के अंदर कुछ स्पेसिफिक चीजें ध्यान रखना, एग्जाम से पहले कुछ स्पेसिफिक चीजें ध्यान रखना, स्पेशली इफ यू लुक मेक सर्टेन स्टैंडर्ड आंसर्स, स्टैंडर्ड कोटेशंस, कोटेशन तो बहुत पुरानी होगी, स्टैंडर्ड कंटेंट जो नोवेलिटी करे। हाँ, ये नोवेलिटी वाला पॉइंट एक और, व्हाट हैपेंस इज, 2 पॉइंट याद रखना। आज से एक छोटी सी किताब डालो जिसमें फैक्ट बुक डालो आप, ठीक। सपोज मैं आपको अब कोई भी क्वेश्चन, जैसे यू नो द फैक्ट्स आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू प्रूव योर स्टैंड, ठीक। अब without giving any fact, you many times largely go where and just making your answer very vague, analytical form, या कुछ ऐसे सीधे सीधे बोल दिए आपने, ठीक। जैसे बहुत सारे कंटेंट मैंने बनाया है, आपको 5 मिनट में सिर्फ कंटेंट बताने में बता रहा हूँ, सारा न्यूज़पेपर से उठाया मैंने, A to Z फ्रॉम द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर से बाहर एक भी चीज नहीं है। अंडरस्टैंड, कई लोग पढ़ते हैं ना कि मैगजीन से हो जाता है यार, ऑल इंडिया सर्विसेज रैंक्स नहीं आती। और एक और चीज यार, you know the media has made things real, reality more than real itself। कई बार reality real से ज्यादा दिखने लगती है, कि कहने का मतलब झूठी reality। तो मैं भी सेलेक्ट हो जाता तो मैं भी यही बोलता कि भैया सोशियोलॉजी में मैंने सिर्फ नितिन सांगवान पढ़ी है, क्यों, मेरे को मेरी इंटेलिजेंस प्रूव करनी है यार, लोगों को ये थोड़ी बताना कि 3 साल मैंने कितनी झक मराई है सोशियोलॉजी के अंदर। वो बोलूंगा तो लोग समझेंगे अब तो होना ही था भाई साहब तुम्हारा। हाउ विल आई गेन दैट रेस्पेक्ट ऑफ बीइंग एन इंटेलिजेंट पर्सन? सो प्लीज, टुडे people are more confused and people selection is more based on trial and error rather than based upon a proper strategy। जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन होगा ये बात रिकॉल करोगे तुम कि हाँ, किसी ने नहीं सोचा था जिस साल एग्जाम दिया सेलेक्ट हो जाएगा, वो क्यों हो गया था, वो स्ट्रेटेजी ट्रायल एंड एरर से सक्सेसफुल हो गई, लेकिन वो आपके लिए कोई जरूरी नहीं है। तो मेक अ पॉइंट वेरी क्लियर, न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंस सिर्फ ये 4-5 मिनट से आपको बताता हूँ कि रियलिटी में इंपॉर्टेंस क्या होती है न्यूज़पेपर की। एक क्वेश्चन में अगर आपको दूं ऐसा, CAG's reports can report only make sense when there is a vigilant media, can that be a good question? अब फटाफट मुझे आंसर चाहिए यार तुम लोगों से। CAG's report can only make sense when there is a vigilant media, can this be a good question in civil services? September 12 के हिंदू के अंदर आया है, ठीक। अब September 13 का एक एग्जाम्पल बताता हूँ। इन केरला फॉर ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग they started imposing fine plus community services। केरला में ड्रिंक एंड ड्राइविंग के लिए फाइन इंपोज किया और साथ में कम्युनिटी सर्विसेज भी किया। उसका फैक्ट निकल के क्या आया पता है? एज पर रिकॉर्ड्स द एक्सीडेंट्स हैव ड्रॉप्ड ड्यू टू कम्युनिटी सर्विसेज, क्योंकि लोग कम्युनिटी सर्विसेज करना नहीं चाहते हैं, फाइन तो फिर भी दे देते हैं। ये होता है क्या पता है? फैक्ट टू जस्टिफाई योर आंसर मीन्स fact is not a number, fact is any studies, opinions, case studies, case laws elaborated, presented in order to just justify the point which you have made. Again, September 13th, Hindu paper, Google it, you will find the incident somewhere lying in the paper. Next, Bangladesh removes virgin word from marriage form as it was, humiliating and breached women's privacy। एक छोटा सा कंटेंट है, मैंने लिख लिया मेरे बुक्स के अंदर। Why? क्योंकि ये कंटेंट जब मैं रिवीजन करूंगा तो कहीं मैं वुमेन्स के अंदर यूज कर सकता हूँ, जेंडर इनइक्वालिटी में यूज कर सकता हूँ कि कैसे वर्ल्ड के अंदर चेंजेस आ रही है। हाईली इस्लामिक डोमिनेटेड कंट्री, वी डू सी दे आर लार्जली ओपनिंग अप टू द आइडिया ऑफ वुमेन इक्वालिटी। डोंट यू थिंक? सिर्फ फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश रिमूव्स वर्जिन वर्ड, खत्म हो गया मेरा फैक्ट। पूरा पॉइंट के ऊपर 4 चांद लग गए जब मैंने छोटा सा एग्जाम्पल इसी पेपर से उठा के दे दिया। आगे प्लास्टिक पोल्यूशन के ऊपर एक वर्ड आया था, एक स्टेटमेंट आया था, मैंने सिर्फ स्टेटमेंट आपके सामने है, जस्ट शो यू, सिर्फ एक स्टेटमेंट्स लिखे हैं नोट्स के अंदर, मैंने 250 वर्ड नहीं लिखे। क्यों? प्रॉब्लम क्या होती है पता है? आप लोग नोट्स बनाते हो पूरा का पूरा कंटेंट लिखने के लिए, मैं ऐसे अच्छे पॉइंट उठाता था न्यूज़पेपर से, लिखता था, टॉपिक डालता था कौन सी टॉपिक से। तो जब मैं मेन से पहले ऐसे 900-1000 पेजेस रिवाइज कर रहा था जो एक 2 लाइन वाले हैं, उससे कम से कम 300 पॉइंट फिट बैठ जाते थे और वो नोवल पॉइंट्स होते थे जो मेरे क्वेश्चन में 7 नहीं 50 चांद लगाने वाले थे। Because that point will not be recalled by the person and that point is not mentioned in any of the magazines, जो आपको बड़ी utterly ऐसी चीजें देती है कि दिस इशू, इसका प्रोस क्या है, इसका कॉन्स क्या है, इसका फ्यूचर क्या है, इसका पास्ट क्या है। यूपीएससी ने ऐसे क्वेश्चन पूछने छोड़ दिए दोस्त। यूपीएससी अब सीधा सीधा आपको नोवेलिटी के बेसिस पे टेस्ट कर रहा है, और नोवेलिटी के बेसिस पे टेस्ट नहीं भी कर रहा है तो आप इंक्लूड करोगे तो आप स्टैंड डिफरेंट करोगे फ्रॉम अदर्स। क्यों? वो एग्जामिनर याद कर लेना जो सारी चीजें वैसी ही पड़ी थक गया है, एक सडनली पॉइंट अच्छा मिलेगा ना, अरे क्या लिखा है पॉइंट, वो ही याद रहेगा जब वो मार्क्स देगा आपको। और 2 मिनट और
The future belongs to nation which gives importance to grains, not to guns. ये स्टेटमेंट आया हुआ था एक आर्टिकल के अंदर, मैंने सीधा उठा के चिपका दिया। नहीं लगता कि तुम्हें ब्यूटीफुल ऐसे बन सकता है, एग्रीकल्चर के क्वेश्चन पे ब्यूटीफुल कंक्लूजन बन सकता है, इंट्रोडक्शन बन सकता है, और छोड़ो सारी बातें, नहीं लगता कल ये क्वेश्चन ही बन सकता है। तो इमेजिन करो, जब मैं ये कंटेंट लिखता हूँ तो मैं सोचता हूँ ये क्वेश्चन भी आएगा तो मैं आंसर क्या लिखूंगा। होगी मेरी ब्रेनस्टॉर्मिंग, जो एनालिसिस में बोल रहा था, और आंसर जब सोचूंगा तो हो गया मेरा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। और अगर इन दोनों से बाहर आऊं तो ये मैं स्टेटमेंट जब पढ़ता हूं तो हो गया मेरा नोवेलिटी। यार वो न्यूज़पेपर जो तुम इग्नोर कर रहे थे, मेरी तीनों चीजें फुलफिल कर रहा है, एनालिसिस का पावर भी दे रहा है, नोवेलिटी कंटेंट भी दे रहा है, और उस क्वेश्चन पे जब उस टॉपिक पे सोचता हूं तो मेरा आंसर राइटिंग स्किल भी हो रहा है। क्यों करनी है मुझे जॉइंट टेस्ट सीरीज किसी की? भाई आई कैन डू द बेस्ट टेस्ट सीरीज व्हिच इज गिवन बाय द हिंदू इटसेल्फ, जो खुद एक टेस्ट सीरीज के फॉर्म पे अटेम्प्ट कर रहा हूं मैं। और आगे, what is important is not to condemn or praise any technology, but to choose the one which can take us to desired goal of sustainability. ऐसे लिखा एक पैराग्राफ, ये वाला पार्ट, कि कोई भी टेक्नोलॉजी को कंडेम या अप्रिशिएट मत करो, हमें सिर्फ उसके फायदे अगर हमारे फ्यूचर के लिए है तो यूज करो, विदाउट लुकिंग इनटू एनीथिंग एल्स। नहीं लगता कभी जेनेटिकली मॉडिफाइड के लिए मैं अगर सिर्फ इसी से कंक्लूड करूं तो एग्जामिनर तो सीधा इंप्रेस हो जाएगा, वाओ व्हाट अ वेट ही हैज प्रेजेंटेड। 200 वर्ड की चीज ज्यादा से ज्यादा 30 वर्ड के अंदर सटाक से कंप्लीट। एक तरीके में सीधा सीधा सपाट सॉल्यूशन आ गया कि तुम्हारे हिसाब से जीएम क्रॉप होने चाहिए कि नहीं। इफ अ टेक्नोलॉजी वी शुड नॉट लुक इनटू द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ इट, कि खराब है या बढ़िया है आइडियोलॉजिकली, हमें उसके बेनिफिट्स देखने चाहिए कि अगर फ्यूचर के अंदर हमारी फूड सिक्योरिटी फुलफिल कर रही है तो हमें उसके साथ जाना चाहिए, क्योंकि हमारा रिक्वायरमेंट है फ्यूचर के लिए। आगे एक फैक्ट देता हूं आरटीआई का। आरटीआई को आज अप्रोक्सीमेटली 15 साल हो गए हैं, ठीक? तो क्वेश्चन बनता है इस साल, नो स्टेट्स एक्सेप्ट दिल्ली एंड महाराष्ट्र have established online RTI portal. कभी आए analyze the RTI and its in empowering the youth or the citizens of the country? तो बताना, दिल्ली और महाराष्ट्र को छोड़ के कोई भी स्टेट नहीं है जिसने कहीं ना कहीं ऐसा पोर्टल RTI का ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट किया। इसका मतलब इसका यूज ही नहीं हो रहा है। इस आर्टिकल में था कि कैसे एनआरआईज यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं हाफ यूज ऑफ मैन पावर हो रहा है। अगर ऑनलाइन कर देंगे तो कहीं से भी बैठे मैं यूज कर सकता हूँ। यूजेबिलिटी समझा रहा हूं, मैं नहीं समझा रहा हूं कंटेंट दे रहा हूं मैं आपको इस क्लास के अंदर। दिस क्लास इज नॉट टू गिव यू कंटेंट, इट इज मियरली टू मेक यू अंडरस्टैंड कि कैसे ये छोटी छोटी चीजें न्यूज़पेपर से ना ब्यूटीफुल चीजें बन जाती है आपके आंसर राइटिंग्स के अंदर। सो आई जस्ट वांट यू कि न्यूज़पेपर को इतने गोल ओरिएंटेड से पढ़ो कि सिर्फ न्यूज़पेपर खोला उससे पहले गोल क्लियर कर लो। ओके, इस न्यूज़पेपर से मुझे कुछ नोबल पॉइंट, 10 नोबल पॉइंट निकालने हैं आज, एक एक अंदर। और ये सीधे ऊपर नहीं मिलेगा भाई, ये आपको एक एक आर्टिकल पढ़ना पड़ता है, उसके बाद बीच में कोई 2 लाइन अच्छी बोली हुई मिल जाती है, आपने निकाला, टॉपिक को नोट किया, मूव ऑन किया। 250 वर्ड के कई लोग बोलते हैं ना सर मैं एडिटोरियल को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में बना के पढ़ लेता हूँ, बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छी स्किल है, बट आई डाउट कि यूपीएससी के अंदर ये स्किल सफिशिएंट रहेगी। क्यों? तुम नहीं कर रहे हो, आधी जनता कर रही है वो। तो आधी जनता जो कर रही है उसके बेसिस पे तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होने वाला है। इस बेसिस पे ही करो, वो अच्छा है, लेकिन इसके साथ कुछ वो कंटेंट डालो जो जनता नहीं डाल रही है, जो तुम डाल रहे हो, जो एग्जामिनर को इंप्रेस कर रहा है। साइंटिफिकली तैयारी करो। मैंने आप ही के लिस्ट में देखे थे कुछ इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और बहुत सारे लोग हैं। साइंटिफिकली तैयारी क्या होता है? प्ले विद द माइंड ऑफ एग्जामिनर इन द हॉल सो दैट यू कैन विन द रेस इन ऑफ द एग्जामिनेशन देयर। आगे पूरी नहीं उठाई है, इतना बड़ा चिट्ठा है मेरे पास इन सारे कंटेंट का, लेकिन मैंने 2-5 पॉइंट सिर्फ आपको एक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए समझाना है। यहाँ पे एक 28 अगस्त 2019 हिंदू पेपर के अंदर उज्ज्वला स्कीम का एनालिसिस आया था, और उसके अंदर फैक्ट दिए हुए थे। राइस करके एक एनजीओ है, उसने दिया था ये सर्वे। उसमें बताया था कि ऐसी मिथ है कि कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि एलपीजी के अंदर फूड कुक किया हुआ क्या होता है, न्यूट्रिशियस नहीं होता है। 25%, 22% लोगों को लगता है हेल्दियर नहीं होता है। अब कभी तुम्हारा उज्ज्वला का एनालिसिस आएगा, सपोज लेट्स सी उज्ज्वला स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम रही है, इनफैक्ट एक फ्लैगशिप स्कीम रही है अपनी गवर्नमेंट की प्रेजेंट, तो कहीं ना कहीं एनालिसिस पूछ सकता है उज्ज्वला स्कीम का। उसके अंदर नहीं लगता यही राइस का छाप देता है या फिर इसको पढ़ा हुआ रहता है, इसके 2 पॉइंट भी मुझे पता रहते, तो मेरा पूरा का पूरा एनालिसिस इसी आर्टिकल ने खत्म कर दिया। क्या किया मैंने? यहाँ पे पूरा स्टडी लिखा मैंने राइस का, ठीक, लेकिन हर जगह स्टडीज नहीं थे, हर जगह 2-2 पॉइंट थे। तो कुछ नोट्स मैंने पूरे लिखे ताकि ये वाला सही का सही उधर उतारना है। पूरा ब्यूटीफुल एनालिसिस विद द फैक्ट्स, विदाउट एनी स्टोरीज। माय आंसर इज डन in shortest span of time of 3 to 4 minutes. Second, ये सारे फैक्ट वाले थे।
जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर ये पूछूं कि अभी बहुत सारे रिसेंट टाइम में हमने देखा है एलिफेंट का एक इशू हुआ था जो पाइनएप्पल के अंदर फायर क्रैकर के थ्रू मर गया, ऐसे बहुत पहले भी रहा है। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट एक बहुत सीरियस डिबेट रही है इंडिया के अंदर। इसके अंदर कई बार क्या होता है पता है, स्टेट वाला सेक्शन छोड़ देती है और यार इसकी न्यूज है, क्या करना है, दिल्ली की है, मैं को क्या करना है, यूपीएससी को थोड़ी दिल्ली का पूछेगा, वो इंडिया का पूछेगा। लेकिन तुम्हें नहीं लगता वो दिल्ली वाले के अंदर भी कोई कंटेंट मिल सकता है जो पूरी इंडिया पे अप्लाई करने से कितना बेहतरीन पॉलिसी बन सकता है? वैसे ही एक स्कीम आई थी उड़ीसा गवर्नमेंट की, गजबंधु एक स्कीम है, उसके अंदर बताया था कि कैसे जो लोकल ट्राइबल जो है उनको एम्प्लॉय करेंगे इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स एंड ट्रैक द मूवमेंट्स ऑफ एलिफेंट्स स्पेसिफिकली। इन व्हाट दे विल डू इज इन ट्राइबल्स को अपॉइंट करेंगे टू ट्रैक द मूवमेंट्स ताकि वो एनिमल्स को भी बचा सके और सेम टाइम इन ट्राइबल्स को भी पैसा देंगे, स्टेट गवर्नमेंट पैसा देगा। क्या किया, एक ही चीज पे दो वॉर, दो सॉल्यूशंस, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा दिया, एनिमल को भी प्रोटेक्ट कर दिया। तुम्हें नहीं लगता कल मैन और एनिमल में ऐसा क्वेश्चन या ऐसा स्कीम आप गजबंधु का स्कीम कोट करोगे तो तुम्हारा आंसर किस लेवल पे होगा? नहीं। लेकिन तुम लोग को क्या करना है, तुम लोग का मतलब तुम लोग नहीं हो यार, यूपीएससी एस्पिरेंट्स है कि नहीं सफिशिएंट है यार, मैगजीन से मुझे मिला मोर देन सफिशिएंट, मैगजीन अंडरस्टैंड, सब पढ़ रहे हैं। दूसरी चीज, मैगजीन ही पढ़ो दोस्त, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस मैगजीन से वो नोवेल कंटेंट अलग से लिख के रख लो। तुम्हें लगता है 12 मैगजीन तुम 2 दिन पहले रिवाइज कर पाओगे, लेकिन ये मेरे 1000 पेज भी होंगे ना, मैं 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 1 दिन पहले भी रिवाइज करूंगा। क्यों? ना तो कंटेंट से भरे हुए हैं और मेरी खुद की हैंडराइटिंग में है और एप्लीकेशन बेस्ड है जहां पे मेरा माइंड हमेशा अटेंटिव रहेगा, तो मैं आराम से रिवाइज करूंगा ये 1000 पॉइंट। और ये 1000 पॉइंट को रिवाइज करके प्रोबेबिलिटी थियरी बोलती है एटलीस्ट 20% तो दिमाग में बैठेगा। 20% ही बैठ गया तो 20 क्वेश्चन में 20 नोबल पॉइंट, माय गेम इज ओवर, आई एम डन विद इट। हर क्वेश्चन में एक नोबल पॉइंट इंट्रोड्यूस करना ही करना है, प्रेफरेबली एट द स्टार्ट, ताकि एग्जामिनर अपने बोरियत से बाहर आए और आपको बोले अच्छा अच्छा लिखा इसने, सीरियसली पढ़े आपका आंसर। एक और जो मैंने सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट कैन रिड्यूस मल्टीपल स्ट्रेसेस ऑन इकोसिस्टम, ये सितंबर 2 का हिंदू एडिटोरियल है, मैंने पूरा आंसर फॉर्म में लिखा है, एक जस्ट झलक दिखाता हूँ। इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, उसी आर्टिकल से निकाल के मैंने लिखा है। पूरा का पूरा क्वेश्चन किसी दिन यूपीएससी में आया, खत्म, इसी आर्टिकल से खत्म, भागने की जरूरत ही नहीं है मुझे, फलाना इधर उधर इधर उधर, परफेक्ट डेटा, परफेक्ट फैक्ट्स, परफेक्ट एनालिसिस, और वहां के अंदर वो भी आईपीसीसी रिपोर्ट का एनालिसिस व्हिच इज क्वाइट एन ऑथेंटिक सोर्स एज फार एज द फैक्ट्स आर कंसर्न्ड। सी दिस 2 सितंबर आया था, पिछले सितंबर की बात कर रहा हूँ, ये 2 सितंबर को आया था। उड़ीसा ने एक अप्रोच अडॉप्ट किया है कॉल्ड एज 5T अप्रोच। 5T अप्रोच, इनफैक्ट ये तो तुम नोट डाउन करोगे तो भी हर जगह यूज होगा। 5T क्या है? टीम वर्क, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी, टाइम लिमिट। आई रिपीट, टीम वर्क, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी एंड टाइम लिमिट। इंडिया में कोई भी स्कीम उठा लो आप, इस 5T पे ही एनालाइज करके आ जाना, मस्त आ जाएगा मार्क्स। जैसे मैंने लिखा है यूजिबिलिटी लिखता हूँ, कभी पुलिस रिफॉर्म में क्वेश्चन आया तो ये 5T यूज करो। टीम वर्क कैसे जरूरी है पुलिस में, ट्रांसपेरेंसी कैसे जरूरी है, हाउ पुलिस शुड बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम 19th सेंचुरी माइंडसेट टू 21st सेंचुरी माइंडसेट, टेक्नोलॉजी कैसे पुलिस यूज करे, और टाइम लिमिट के अंदर कैसे पुलिस अपना काम निभाए या फिर फर्ज पूरा करे। वैसे ही जुडिशियल रिफॉर्म्स पे आए तो कभी 5T यूज करना। मेकिंग इंडिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बहुत बड़ा डिबेट है, नीति आयोग कर चुका है, हर कोई कर चुके हैं। उसके अंदर भी बताओ कि 5 ट्रिलियन बनाने के लिए 5T कैसे हमारे लिए यूजफुल हो सकता है। क्या किया, 50 वर्ड का पूरा फैक्ट है या फंडा है, कम से कम मेरे 50 क्वेश्चन में यूज हो सकता है, जहां पे पूरा 50 क्वेश्चन इसी 5T पे बन सकता है। कहां से आया? न्यूज़पेपर से आया। पेज नंबर बता देता हूँ, सितंबर 2, सॉरी पेज नंबर नहीं है, हिंदू सितंबर 2 लास्ट ईयर का पेपर है, ठीक, 2019 का। अब अंडरस्टैंड, ये सारे फैक्ट अब मेरे को नोवेलिटी देंगे, और अगर सपोज आप ही के साथ मैं लिख रहा होता तो इमेजिन आपकी कंपटीशन किस लेवल पे है दोस्त, कि कई लोग तैयारी कर रहे हैं ऐसे, ठीक। अब आप अगर ये तैयारी में मिस आउट कर रहे हो तो आप वहां पे जाके वही लिख के आने वाले हो जो 99.4% लोग लिखने वाले हैं। So my only sincere request to all of you in this session of 30-35 minutes which have happened is this: always focus on bringing novelty, structure and fact to prove your answer. 3 चीज है आपके आंसर में, मोर देन एवरेज मार्क्स है। मोर देन एवरेज मार्क्स में आपको पता है रैंक 1 बनते हो, आईएएस तो दूर की बात, आईएएस तो कुछ भी नहीं है, रैंक 1 आ जाएगी। आई रिपीट, हर 20 क्वेश्चन में नोवेलिटी, एक पॉइंट हर नोवेल रहे क्वेश्चन में। दूसरा, स्ट्रक्चर हर क्वेश्चन का परफेक्ट रहे, यू नीड टू फोकस ऑन द स्ट्रक्चर।
थर्ड, फैक्ट देना, कोई भी पॉइंट प्रूव करो, फैक्ट में चाहे नंबर हो, चाहे ओपिनियन हो, चाहे स्टडीज हो, इनके लिए तुम्हें ऐसे कंटेंट बनाने पड़ेंगे, चाहे वो तुम मैगजीन से बनाओ, चाहे तुम मेरे कॉपी करके बनाओ, चाहे तुम न्यूज़पेपर कॉपी करके बनाओ. It's your choice. So this is what I wanted to share with you, so that it saves your time as well as my time as well. We both are running short of our times. Now I'll just open the session for the questions. If anybody is having any questions, really good to interact with you people, and I really hope you come out with flying colors and make the hostel proud and as well as your community proud. Thank you so much for this. If any clear, सर्वेश, तो पहले आप सिर्फ एनालिसिस पे फोकस करो, 2 टेस्ट, उसके बाद आप खुद जज करना थर्ड टेस्ट के अंदर आपका पेस भी बढ़ जाएगा, आपका एनालिसिस भी बढ़ जाएगा, क्वालिटी ऑफ आंसर्स भी बढ़ जाएंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ जाएंगे कंपेयर टू द फर्स्ट 2 टेस्ट व्हिच यू हैव अटेम्प्टेड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस. सो आई होप दिस पॉइंट मेक्स क्लियर. धीरे धीरे दोनों चीजें करनी है, बिकॉज टाइम हमारे पास 2 से 2.5 महीने भी नहीं है. तो इस टाइम के अंदर जब हमें फास्ट जाना है तो पहले एनालिसिस में जाओ, वो शॉर्ट रिजल्ट देगा. क्वेश्चंस सी सर्वेश, अगर आप 20 क्वेश्चन इधर अटेम्प्ट भी कर लियो, कोई गारंटी है तुम उधर 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे सर्वेश? नहीं. लेकिन यहाँ पे तुमने एनालिसिस पावर इंप्रूव की, एनालिसिस कैपेसिटी इंप्रूव की, क्या गारंटी है वहां पे तुम्हारा डेफिनेटली एनालिसिस पावर बेटर रहेगा? यस. तो मीन्स क्या है, आप खुद जानते हो, यू आर वेल एजुकेटेड पीपल. तो शॉर्ट वाले पार्ट में चलो ना, कि ये करना जरूरी है. क्वेश्चन 20 करना इज नॉट सफिशिएंट. क्वेश्चन 20 क्वालिटेटिवली करना इज गुड एंड सफिशिएंट एंड रिक्वायर्ड. दैट कैन ओनली बी डन इफ यू डेवलप योर स्किल्स. और एनालिसिस के लिए आई हैव सेड यू 2 थिंग्स. एक बार इसको फॉलो करके देखो, इट विल रियली गिव यू इमेंस रिजल्ट. कई बार बहुत सारी चीजें जो आसानी से रिजल्ट देती है ना, वो हमें बहुत प्यारी हो जाती है, और वी फॉलो दैट अप. रिसेंटली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च किया गया था. I still have that video. I think I'm not so sure I have that right now or not, or else I would have forwarded it to Nileji, who would have sent it to all of you. And Harvard University आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, जाने मानी एक रिसर्च एक यूनिवर्सिटी है. As we all know, any straight line is the shortest distance between 2 points. Understand this point very clear. इधर तक है ठीक. शॉर्टेस्ट रूट कौन सा है? ये वाला. अगर मैं यहां से एक बॉल चलाऊंगा तो वो शॉर्टेस्ट रूट में यहां तक आएगी, राइट? सबसे फास्टेस्ट आएगी. इस रिसर्च में इन्होंने किया, मल्टीपल टाइम्स, काफी टाइम किया गया था, और उसका एक रिकॉर्डेड वीडियो भी बनाया इन लोगों ने. 3 बॉल को कंटिन्यूस एक साथ एक ही टाइम पीरियड में भेजा, ये सबसे लास्ट में पहुंची. मीन्स व्हाट? फिलोसॉफिकली जो हमारी चीज है क्या, द शॉर्टेस्ट रूट makes you reach the fast point at the fastest on the other hand at the fastest pace. Wrong. UPSC में भी सही चीज ऐसी अप्लाई होती है. shortest route of following only magazines, चाहे वो विजन हो, चाहे आईएस बाबा हो, चाहे दिवाकर का हो, ठीक. the longest route is newspaper will really make you reach the goal at the shortest possible time despite taking the long time. क्यों पता है? एक रीजन है उसका, कि वो न्यूज़पेपर तुम्हारी एनालिसिस के लिए इस कदर डेवलप कर देता है, तुम्हारे सामने कोई भी क्वेश्चन थ्रो अप क्यों नहीं किया गया हो, यू आर एबल टू कैपेसिटी टू राइट दैट. वो एनालिसिस एबिलिटीज या फिर जो ये कंटेंट मैंने आपको बताया, एक भी मैगजीन से उठा के दिखाओ, आई विल स्टॉप रीडिंग न्यूज़पेपर, आई विल स्टार्ट रीडिंग दैट पर्टिकुलर मैगजीन यार. सो आई होप दिस इज क्लियर. ट्राई टू डेवलप एनालिसिस स्किल. आधा घंटा स्पेसिफिकली एनालिसिस को ही दो यार. 10 घंटे दे रहे हो ना पढ़ने के लिए, आधा घंटा इधर दो. एंड एक और चीज, जितने लोग हो इधर यार, मेक अ पॉइंट वेरी क्लियर, यू हैव सफिशिएंट टाइम. मेंस वालों को मैंने इस तरीके से देखा है कि भाई टाइम ही नहीं है. सब टाइम है यार, टाइम सबके पास उतना ही है, और तुम्हारे पास बहुत टाइम है. इट्स नॉट दैट 10 स्टूडेंट कम से कम प्रीवियस अटेम्प्ट दे के बैठे हो मेंस का, अभी भी तुम्हें लग रहा है पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ, तो अगले 3 साल अगर अटेम्प्ट देना पड़ा तो भी नहीं होने वाला है. So don't run behind the syllabus, run behind excellence. रणछोड़ चांचड़ बोल के गए थे ना 3 Idiots में, run behind excellence. सक्सेस झक मार के आएगी, and आती है, it's a fact. So anybody else, focus on analysis, and focus on analysis is the only lesson which you should take from this seminar back home. The rest all will be automatically sorted out. Acha, sir, how to tackle the bouncer questions regarding which we have no idea, like cyberdome questions? What novel dimensions can be taken into account to make answer different? अच्छा, 2 questions हो गए ये. First, कि जो बाउंसर क्वेश्चंस है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 2017 का भी एक पेपर देखा था जिसमें जूनो मिशन या कुछ ऐसा टाइप का सा एक क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक.
बाउंसर और हर साल, जैसे एक साल मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड आया था 2015 में है, उस टाइम तक कोई नहीं जानता था, आज हर एक मटेरियल के अंदर मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के ऊपर अलग अलग पता नहीं क्या क्या चीजें दी हुई है. Sometime those bounces questions will be there, ठीक. And what you can best do is avoid it. Fact बता रहा हूँ, सच, avoid it. अगर आपको लग रहा है साइबर डोम, या फिर सपोज कल मुझे पूछ ले the principles of working of Rafales, नहीं पता दोस्त, I really don't know. And when I don't know, UPSC के नोटिफिकेशन में क्लियरली है, कुछ भी लिखोगे तो कुछ नहीं देने वाला हूँ. So let's avoid that up. मेरा वर्क इजी हो गया. क्यों? 20 में से एटलीस्ट एक क्वेश्चन है जो 99.9% लोगों को नहीं आ रहा है. इसका मतलब 19 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, तो मेरे पास 8 मिनट ज्यादा है बाकी दूसरे क्वेश्चन की. It's just the way you think. Because if you feel कि सारी चीजें आएगी, नहीं आने वाली है. किसी को नहीं आई है. जो टॉपर है उसको नहीं आया, मेरे टाइम में मुझे नहीं आया, शायद आपके टाइम में आपको भी नहीं आएगा. But still you can crack the examinations as I have done. I have left questions. करप्शन का क्वेश्चन मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर में छोड़ दिया था 20 मार्क का. क्यों पता है? मुझे आज तक वो क्वेश्चन समझ ही नहीं आया क्या पूछा था उसने. आज भी कई बार मैं बैक इन जाके मेमोरीज में आता हूँ तो वो क्वेश्चन सोचता हूँ कि था क्या क्वेश्चन. करप्शन का क्वेश्चन. सर करप्शन क्या बोल रहे हो? हाँ, प्रेजेंट ही ऐसे किया गया था, मुझे क्वेश्चन का मीनिंग समझ में नहीं आया. अब लालच क्या होता पता है? अरे करप्शन है, कुछ तो लिख ही देंगे, सेम हो ही जाएगा. नहीं, आई वॉज वेरी श्योर. टाइम वेस्ट करना नहीं है. जब मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आंसर उसको क्या समझ में आएगा यार. सो बेटर अवॉइड दैट. एंड आई अवॉइडेड इट. आई स्टिल क्रैक्ड इट. सो प्लीज, सम क्वेश्चंस विल बी देयर, यू कैन नॉट वर्क ऑन इट. जैसे पीटी के अंदर मैं हर स्टूडेंट को ये बोल के चलता हूँ 20 क्वेश्चन आने वाले हैं जो दिमाग के ऊपर से जाएंगे. उन 20 क्वेश्चन को सिर्फ एक चीज बनती है, रेस्पेक्ट. रेस्पेक्ट के सिवा कुछ नहीं बनता उनको. रेस्पेक्ट देम, सैल्यूट देम एंड मूव ऑन. क्यों? 80 क्वेश्चन करने, टाइम ज्यादा है हमारे पास. अब second, novel dimensions can be taken into, what novel dimensions. अब what is something that keeps on varying from question to question. मैंने जो क्वेश्चंस आपको बताए, नोवेल मतलब क्या है? कुछ ऐसा कोई का व्यू पॉइंट, कोई ऐसा फैक्ट जस्टिफाई करने के लिए दैट इज नॉट यूजुअली. जैसे आपने बताया साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, उन्हीं क्वेश्चन से एग्जांपल देके बताता हूँ. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मेजरली क्वेश्चन मुझे एग्रीकल्चर के बारे में आया, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी से कंसर्न्ड आए, लेकिन मैं उसको ह्यूमन बिहेवियर, फैमिली वाला पार्ट, चेंज वाला पार्ट, या फिर सोशल क्राइम्स वाला पार्ट, उससे कनेक्ट करूंगा. ये मेरा नोवेलिटी हो जाएगा. जो ऑब्वियस वाला पार्ट है वो तो है ही है, लेकिन ट्राई टू राइट टू डिफरेंट थिंग्स बाय कनेक्टिंग इट टू सर्टेन एस्पेक्ट्स व्हिच नॉर्मली आर नॉट गोइंग टू बी कनेक्टेड विद दिस. आई एक एग्जांपल बताता हूं आपको. एक सिलेबस में टॉपिक है आपके टेक्नोलॉजी इन एड ऑफ फार्मर्स. कुछ ऐसा सा एक टॉपिक है, टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर्स करके एक टॉपिक है पेपर 3 के अंदर. अंडरस्टैंड? इस टॉपिक के अंदर टेक्नोलॉजी इन एड के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी लिखोगे आप यार? What are those technologies which are mentioned here? Can anybody tell me? कौन सी टेक्नोलॉजी लिखोगे? सपोज मैं यही क्वेश्चन पूछ लूं, what are the technologies which are aiding the farmers in their production or agriculture, जो भी आप मानो. Normally people लिखेंगे ट्रैक्टर्स, लिखेंगे सॉइल हेल्थ कार्ड, लिखेंगे ड्रोन्स, लिखेंगे कुछ और. किसी ने कोई टेक्नोलॉजी आधार कार्ड का लिखा? देखो मेट्रोलॉजी, आंसर देखो आप. गुड, मैं नहीं बोल रहा हूं कोई रॉन्ग है, बट वो चीज जो और भी व्हाट टेक्नोलॉजी आपको सब पता है, एनीथिंग व्हिच इज लार्जली रिड्यूसिंग द ह्यूमन एफर्ट्स एंड मेकिंग आवर प्रोडक्टिविटी मोर हायर विद द लेसर एफर्ट्स. टेक्नोलॉजी क्या हो सकता है इधर? टेक्नोलॉजी कैन आल्सो बी लार्जली बैंक लोन्स, इजी डिस्पर्सल ऑफ बैंक लोन्स. क्या टेक्नोलॉजी नहीं है क्या? व्हाट यू से इज providing a better education to the farmers. Is that not a technology which is going to make them more aware about the modern scientific techniques? जैसे आप ये ई लेसन होते हैं, जैसे जूम है या कुछ ऐसी चीजें और है, क्या टीवी चैनल वाला टेक्नोलॉजी नहीं है? तुम सॉइल हेल्थ कार्ड, मेट्रोलॉजी, सॉइल साइंसेस, फलाना साइंसेस पे क्यों घुस जाते हो यार? पॉइंट ये है, उस टेक्नोलॉजी से तुम कनेक्ट क्या करते हो? ट्रैक्टर से लेके फैमिली तक टेक्नोलॉजीज है जो फार्मर्स को डायरेक्टली बेनिफिट कर सकती है. इट्स ओनली हाउ यू अप्लाई दैट टेक्नोलॉजी एंड हाउ यू अंडरस्टैंड दैट टेक्नोलॉजी व्हिच लार्जली एड्स फार्मर्स. चाहे वो सॉइल हेल्थ कार्ड हो, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे वो इजी डिस्पर्सल ऑफ लोन्स हो, चाहे वो बेटर रोड्स हो, चाहे वो बेटर वेयर हाउसेस हो, सब टेक्नोलॉजी है दोस्त. सबके सब टेक्नोलॉजीज है. So this is what novelty is. अब इस novelty के लिए एक ही चीज होती है, analysis. And novelty आपको धीरे धीरे तब समझ में आएगी जब आप पेपर से ऐसे नोवेल पॉइंट के लिए स्पेसिफिकली सर्च करोगे. जब सर्च करोगे तो धीरे, अच्छा ये पॉइंट यहाँ पे यूज हो सकता है, अच्छा आई कैन यूज दिस पॉइंट हियर, ओके दिस पॉइंट कैन बी यूज्ड इन दिस पार्ट ऑफ द सिलेबस. स्टार्ट डूइंग इट वंस, यू विल ओनली अंडरस्टैंड दिस. बिकॉज बने बनाए सॉल्यूशंस नहीं है नोवेलिटी के लिए. अगर होते तो शायद आज राजेंद्र नगर या यूपीएससी की तैयारी में नोवेल रहता ही नहीं, जहाँ पे
भतेरे टेलीग्राम चैनल है, भतेरी इंस्टीट्यूशन है, फिर वो नोवेलिटी थोड़ी रहता. इट इज समथिंग अपॉन यू हाउ यू मेक इट नोबल. आई विल टेल यू फॉर एग्जांपल, जस्ट टू से कि नोवेलिटी क्या होती है. इट जस्ट द वे यू प्रेजेंट इट. अगर मैं डिफाइन करूं नोवेलिटी को, जस्ट इन दिस कंटेक्स्ट इज द वे यू प्रेजेंट इट. आई विल आस्क यू वन सिंपल क्वेश्चन. प्लीज, आई सिंसियर रिक्वेस्ट यू, all of you, to answer this question. Who is great men? Who is considered as a great man? आपके नजर में क्या है? मान लो इंटरव्यू में मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा है, आपके नजर में ग्रेट मैन क्या, कौन है? Who are great men? Great men कौन होता है? Can anybody tell me this? Just to answer शुभम्स क्वेश्चन की नोवेलिटी क्या होती है. और एक यूपीएससी का क्वेश्चन भी दूंगा इसके बाद नोवेलिटी बताने के लिए. सर गाइस, एनी एक आंसर तो दो यार. इट्स बीइंग सो लेथर्जिक. A man of principle, a man of great values. अगर फिर ग्रेट, मैं इनको ग्रेट वैल्यूज, अब पॉइंट वो है कि ग्रेट वैल्यूज कैसे पता चलेगी. वो हैव ग्रेट कैरेक्टर. सी. अब एथिक्स वाला पॉइंट मुझे भी टैकल करना चाहिए था. देखो, मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल इज अगेन क्वेश्चनेबल. वैल्यूज कोई डिफाइन नहीं है. कैरेक्टर, हाउ डू यू डिफाइन अ कैरेक्टर? टू समवन अ विलन मे बी अ हीरो, टू समवन अ हीरो मे बी अ विलन. कैरेक्टर इज समथिंग, यू नो, एक वैल्यू बेस्ड आंसर्स आया गया है. ठीक, हु कंट्रीब्यूट्स इमेंसली. परफेक्ट. इनफैक्ट कार्ल मार्क्स ने बोला था ग्रेट मैन की, बोला था कि ग्रेट मैन इज अ मैन हु फुलफिल्स द नीड ऑफ हिज टाइम. ही इज ग्रेट. तो एक जो फादर है वो भी ग्रेट है, उस फैमिली की नीड फुलफिल कर रहा है. एक वो फार्मर है वो भी ग्रेट है कि कंट्री की फूड सिक्योरिटी इंश्योर कर रहा है. जो साइंटिस्ट न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है वो भी ग्रेट है क्योंकि कंट्री को प्रोटेक्ट कर रहा है. सो मार्क्सियन अंडरस्टैंडिंग, मैं मार्क्स नहीं बोलना चाह रहा हूँ, मार्क्स मैंने कोट किया क्योंकि एटलीस्ट आपको लगे कि नहीं दिवाकर सर की नहीं, मार्क्स की अंडरस्टैंडिंग है, वो ज्यादा वैल्यू रखने के लिए, नथिंग मोर देन दैट. So a great man is a man who contributes to his times. कि अपने टाइम में कंट्रीब्यूट कर रहा है, प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन दे रहा है, वो ही ग्रेट है यार. तो जिस दिन मेरे पास खाने के लिए पैसा नहीं है, जो मुझे खाना दे रहा है वो ग्रेट आदमी है मेरे लिए. तो जिस दिन मेरे पास, यू नो, मूवी जा रहा हूँ और मूवी जाने के लिए उधर जाके हाउसफुल हो गया और उस मूवी के लिए मुझे कोई टिकट दे रहा है, वो ग्रेट है मेरे लिए. ही इज कंट्रीब्यूटिंग. अब वहां पे इंडिविजुअल एग्जांपल ले लिया मैंने, सोसाइटी के कंटेक्स्ट में देखना. अब बताता हूँ नोवेलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी कितने चिल्ला के नोवेलिटी को स्ट्रेस कर रहा है. यूपीएससी में 2014 में एक मेंस में क्वेश्चन आया था, व्हिच इज द बिगेस्ट डिस्कवरी ऑफ द पास्ट मिलेनियम. पिछले 100 साल की बिगेस्ट डिस्कवरी क्या है अकॉर्डिंग टू यू. एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा हूँ कि यार रट्टा थोड़ी मारा क्वेश्चन का. व्हिच इज द बिगेस्ट डिस्कवरी अकॉर्डिंग टू यू इन द पास्ट मिलेनियम. ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है दोस्त. 2014 का मेंस पेपर है, एक बार चेक करना. इतना ओपन एंडेड क्वेश्चन कि आपके हिसाब से पूरे पिछले 100 साल की सबसे ग्रेटेस्ट इन्वेंशन क्या थी, सॉरी डिस्कवरी क्या थी. डिस्कवरी, नॉट इन्वेंशन, डिस्कवरी. ठीक, कैन एनीबॉडी टेल मी? कोई बता सकता कुछ? कोई अपने हिसाब से, सबका अपना अपना आंसर होगा. देखो कितना वैरी करेगा ये आंसर. एनीबॉडी वांट्स टू कंट्रीब्यूट व्हिच शुड बी द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ द मिलेनियम, व्हिच कैन बी. अपना अपना व्यू पॉइंट है वो. एनीबॉडी? जल्दी जल्दी गाइस. Electricity, good. Democratic form of government, perfect. और कोई आंसर नहीं? High yielding seeds, okay, good enough. अब ऐसे और भी आपके मल्टीपल आंसर्स आ सकते हैं. कोई स्टीम इंजन बोल सकता है, कोई टायर बोल सकता है, कोई कोई भी चीज एक हो सकता है. ठीक, अब आपको सिर्फ अंडरस्टैंड कराता हूँ. मैंने इनफैक्ट एक आर्टिकल पढ़ा था, उसके अंदर का एक अंडरस्टैंडिंग बताता हूँ, तो मुझे वो इंप्रेस कर गया. सम टाइम आप यूपीएससी से बाहर पढ़ते हो, वो बहुत सारी चीजें यूज कर पाते हो एग्जामिनेशन में अननोइंगली. यू डोंट नो नाउ दैट. इफ यू लुक इनटू दिस, चाहे मैं आई यील्डिंग उठाऊं, इलेक्ट्रिसिटी उठाऊं, इनको सारी चीजों से ग्रेटेस्ट डिस्कवरी कौन सी होगी जो कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड पे इंपैक्ट कर गई? न तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आज पूरे वर्ल्ड पे है, और न वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वैसी रही जैसे पहले थी. I'm not saying it's not. You can prove that. I'm not saying it is wrong. I'm not saying it's wrong. It can be proved. But at least हर चीज पे इम्पैक्ट कर जाए और उसका होना ना होना अपने आप में इतना मैटर कर जाए आज की लाइफ में कि it's like for everyone. It's like for, it's a myth. See, if I have to add it here, suppose if I say the discovery of America was the greatest discovery of the past millennium, ये होता है bloody novelty. अब मैं नहीं बोल रहा हूँ ये राइट है या रॉन्ग है, ये मैंने नोवेलिटी से ऐड किया. कैसे? मुझे पता है मैं इसको पॉलिटिक्स से भी कनेक्ट कर ले जाऊंगा, मुझे पता है मैं इसको इनइक्वालिटी से भी कनेक्ट कर ले जाऊंगा, मुझे पता है मैं इसको डेवलपमेंट से कनेक्ट कर ले जाऊंगा, मुझे पता है इसको आइडियोलॉजी से कनेक्ट कर ले जाऊंगा, मुझे पता है आज के टाइम में भी अमेरिका का डोमिनेशन बता दूंगा, और मुझे पता है कि पिछले टाइम में भी वर्ल्ड वार से भी अमेरिका को कनेक्ट करके ले जा सकता हूँ कि पूरे वर्ल्ड को बचाने वाली फैसिज्म और नाजिज्म से अमेरिका का ही रोल रहा था उसके अंदर. वन ऑफ द रोल, वी आर नॉट सेइंग ओनली रोल.
कैसे आया नोवेलिटी? क्यों? मैंने पर्पसफुली नोवेलिटी ही पढ़ना स्टार्ट किया कि मुझे नोवेल ही लिखना है। तो एग्जाम में ये नहीं कर पाओगे, आज कर पाओगे कि जो लिखूंगा नोवेल लिखूंगा, तब जाके वहां पे 2 पॉइंट नोवेल आएंगे। आज 1 पॉइंट नोवेल पढ़ोगे, उधर जाके 1 रिप्रोड्यूस कर दो, डाउटफुल। लेकिन आज अगर सिर्फ नोवेल लिखोगे, वहां पे एटलीस्ट 1 पॉइंट तो नोवेल आ ही जाएगा। सो प्लीज अंडरस्टैंड शुभम, दिस वाज व्हाट इज नोवेलिटी, हाउ यू यूज द एग्जिस्टिंग कंटेंट इन such a place which makes a huge impact, which the others would not have imagined that point could be used in that context in such a damn manner. So this is something, yes, it takes time, but we don't have so much of time. Initially if you start practicing, maybe at least 20%, 30%, 20 में से नहीं, उन 20 क्वेश्चन में से एटलीस्ट 5 क्वेश्चन में इंकलकेट कर पाए, वो ही तो सफिशिएंट है. समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन द नथिंग, एटलीस्ट इन दिस कंटेक्स्ट. So I hope this point is made clear to you, and from now onwards you will purposefully start looking into the novelty aspects of it. Anybody else who is having any specific doubt? Guys, doubt है specifically बोलो, मैं tackle करूंगा, but wait करना फिर it's like you are wasting your time and my time as well. आप पूछो doubt, I'll tackle it for another 3 hours if you want. But doubts पूछो clearly, ताकि आपको productive लगे ये session. ऐसे ही नहीं हो कि both are just sitting on the other sides. So last time I'm asking, is there any other doubt? नीलेश जी, कोई डाउट और आप कुछ बोलना चाहते हो जो मैं बोलूं या कुछ और? Sarvesh has put up one question, and this came up otherwise also: how to prepare for the ethics paper, and how to divide time between optional, GS and ethics. Okay, ठीक है. Two things are there now. So first point, ethics paper का जहां तक concerned है, इस साल अगर मार्क्स देखोगे एथिक्स के बहुत अच्छे स्कोर रहे हैं, जो आए हैं स्कोर सामने उसके पॉइंट ऑफ व्यू से. एथिक्स पेपर के अंदर जो मेरे को एक सिंप्लीफाइड स्ट्रेटेजी लगती है, क्यों, एक चीज सिंपल से बताता हूँ, मेरे टाइम में एथिक्स पेपर नहीं था, लेकिन ऐसा तो है नहीं एथिक्स थे नहीं, ठीक. दूसरी चीज जो मैंने पढ़ा है अभी तक, या जैसे मैंने सीखा है पढ़ के या फिर लोगों को देख के, एग्जामिनेशन पैटर्न्स को समझ के, एक चीज मैंने बहुत क्लियरली नोट डाउन की है कि एथिक पेपर के अंदर सिर्फ एक चीज अगर somebody is doing wholeheartedly and that takes hardly 15 days every day 2 hours, उसमें आपका एथिक्स बहुत वेल टू डू कवर्ड हो जाएगा कि शायद ही कोई चीज बचे जो लेस देन एवरेज लिखी हो आपने. क्या है सिलेबस के अंदर हर टॉपिक जो मेंशन्ड है, जो वैल्यूज, प्रोबेबिलिटी, न्यूट्रलिटी, फलाना वैल्यूज, फलाना ये कोड ऑफ कंडक्ट, जो मेंशन्ड है, उसके ऊपर 50 से 60 वर्ड का कन्वेंशनल, उसका एग्जैक्ट डेफिनेशन बनाओ. एग्जैक्ट डेफिनेशन कि मीनिंग क्या है. 50-60 वर्ड सफिशिएंट होंगे, किसी का 30 में, किसी का 50 में. उस डेफिनेशन के बाद में उसको आप अपने ओन एग्जांपल से अप्लाई करके एक्सप्लेन कर दो 2 लाइन के अंदर, ताकि उसकी अंडरस्टैंडिंग दिमाग में फिट हो जाए. तो कोई भी न्यूट्रलिटी है तो आपने बताया, फिर आपने बताया कि आपका कोई पर्सनल इंसिडेंट रहा होगा कि अ पर्टिकुलर पुलिस ऑफिसर हु लार्जली files and FIRs of a person who is not belonging to his community largely shows is the celebration of this value of neutrality. या कैसे भी आपका पर्सनल एक्सपीरियंस या आप उसे अप्लाई करो. 2 चीजें होती है इससे. क्या होता पता है, एक जो मैंने अभी पूरे लेक्चर में स्ट्रेस किया है, आप खुद सोच के चीजें करने लगोगे, और सोची भी चीजें याद रहती है, पढ़ी हुई चीजें फिर भी भूल जाते हो. हर टॉपिक जो वर्ड मेंशन्ड है, टॉपिक नहीं वर्ड मेंशन्ड है एथिक्स के अंदर, शायद 150 पेज के अंदर आपका पूरा का पूरा एथिक्स कंप्लीट हो जाएगा इन सच अ मैनर दैट इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू लूज योर मार्क्स इन दी एथिक्स. बट साथ में एक चीज करनी है, सिर्फ 50 वर्ड लिखने से नहीं होगा, साथ में उसकी एप्लीकेशन भी तुरंत उसके नीचे लिखना. चाहे 5 मिनट लगे आपको सोचने में, 10 मिनट लगे आपको सोचने में, डेली 10 वर्ड्स उठाओ सिलेबस से. 15 दिन में आपका सारा का सारा एथिक्स का सिलेबस वेल टू डू कवर हो जाएगा. बाकी पार्ट पड़ता है एक जो थियरीज है. थियरीज के लिए नोट्स बहुत अच्छे से मिल जाएंगे. आई नॉट सजेस्ट यू टू गो फॉर एनी बुक बिकॉज मैं प्लेटो, एरिस्टोटल, सॉक्रेट्स, अल्थुजर, इन सबको नहीं पढ़ सकता डिटेल में यार एट द स्पैन ऑफ दिस, एंड इट इज नॉट रिक्वायर्ड. वो डिटेल नहीं पूछने वाले हैं वहां पे वो. तो अभी कोई भी नोट जो आपको लगता है बेहतर, मैंने रिसेंट में नोट्स कोई मटेरियल कभी नहीं पढ़ा है, तो बुक्स मैंने जरूर पढ़ी है, उनमें से कोई भी 50-60 पेज के अंदर इफ यू जस्ट रीड इट वंस, आई थिंक दैट विल सफाइस एज फार एज द थिंकर पार्ट इज कंसर्न्ड, ओनली द थिंकर. बाकी पार्ट कोई किताब पे मत जाओ, सिर्फ अपने पर्सनल उस चीज की वैल्यू को मीनिंग में बताओ, फिर उसका एक एग्जांपल लिखो. योर एथिक्स विल बी रियली वेल डन गाइस, और एट द लीस्ट एफर्ट the most efficient result. And we have seen this year again the ethics has again come up very profoundly and in a very stronger manner.
coming to the second question, this is what I feel ethics is the best, this is one of the very best way to do it, because best is again a value loaded term. एक और जो चीज आपने मुझे बताया, सेकंड क्वेरी क्या थी नीलेश जी, वो ऑप्शनल और जीएस में कैसे मेंटेन करना है टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, मैंने मेरा एग्जांपल बता देना है पहले, फिर आपको बताऊंगा कैसे अब शायद वो थोड़ी चीजें चेंज हो गई है, कि व्हेन आई यूज्ड टू डू, आई हैड 2 ऑप्शनल्स जिसका टोटल स्कोर जाता था 1200 मार्क, जीएस का स्कोर आता था 300 300 600 मार्क, ठीक। सो अंडरस्टैंड द पॉइंट हियर, 1200 मार्क के अंदर हमारा सिंपल स्ट्रेटेजी ये हुआ करता है 80% टाइम फॉर योर ऑप्शनल, 20% फॉर योर जीएस। क्यों? मेरे ऑप्शनल मेक और ब्रेक करते थे, क्योंकि फाइनल कट ऑफ हाईएस्ट, यू नो, कार्तिक अड़प्पा के टाइम में जाऊं मैं, या फिर मुत्तल्ला रेवर राजू के टाइम में जाऊं, तो 1300 कुछ आते हैं मेंस के अंदर, नहीं तो नॉर्मली 1000 1100 उस टाइम, वो भी बहुत ज्यादा हो गए, वो भी नहीं आते थे। अब अगर आज के टाइम में जाए, 500 का आपका हो गया ऑप्शनल, और अप्रोक्सीमेटली 1000 मार्क के आसपास, 1000 मार्क का हो गया आपका, ऐसे छोड़ देते हैं जीएस जनरल स्टडीज, ठीक। फिर भी 1000 में से आपका स्कोर कितना आ रहा है, मैक्सिमम बेस्ट पेपर उठाए तो 400 के आसपास, बेस्ट टू बेस्ट पेपर अगर गया है तो। ऑप्शनल के अंदर मेहनत अगर ऑन एन एवरेज भी की है तो एवरेज स्कोर आ जाता है 240, कोई भी ऑप्शनल उठा लो, ऑन एन एवरेज किसी भी ऑप्शनल में देखो 240 आप आराम से टच कर जाते हो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगाओ, इधर बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगाओ, मेहनत डबल। अगर जीएस में करूं फिर भी 400 क्रॉस करना इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, कि ओनली वो इक्के दुक्के होंगे जो 400 के आसपास से टच करके उससे आगे जा रहे हैं, ठीक। ऑन एन एवरेज हर पेपर में 100 मानूं तो 400 आते हैं, नॉर्मली किसी पेपर में 90 आ रहे हैं इस साल, जैसे पेपर 2-3 का स्कोर देखो आप, कहीं पे 120 आ सकते हैं, ऑन एन एवरेज 400 टच करते हैं, ठीक है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट एवरेज वाला 340 360 या 370 के आसपास टच करेगा। अब मैं मान के चलता हूं हर किसी को कि हम सब एवरेज ही हैं, टॉपर नहीं मान के चलेंगे अपने आप को, 350 एवरेज निकल रहा है, 240 एवरेज निकल रहा है, ठीक। लेकिन ऑप्शनल पे मैं मेहनत करता हूं, स्कोप है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि 300 टच कर जाएगा। जीएस में मैं बहुत भी मेहनत कर लूं तो 400 टच करेगा नहीं करेगा हमेशा डाउटफुल रहेगा। अगर सिर्फ ये साइंस लगाओगे इधर, आई विल पर्सनली सजेस्ट कि 60% time of your entire preparation in these next two phases or in any attempts which you're giving should always be dedicated to your optional, because once you improve your optional दोनों चीजों में improve करेगा तुम्हारी एनालिसिस और राइटिंग, और एक बार आदमी की एनालिसिस और राइटिंग इंप्रूव हो जाए ना, वो कोई भी क्वेश्चन को टैकल करने की क्षमता रखता है, may not be in the best form but at least more than an average form. So my suggestion to all of you friends is this, that always focus at least 60%, more than 50% of your time should be your optional. But since GS is having a high marks, we can definitely give at least 40% mark, but 40% time. But ये 40% time में obviously usability या फिर इसका result हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहता है। ऑप्शनल में चीजें बहुत हद तक प्रेडिक्ट हो जाती है, चाहे कोई भी ऑप्शनल आपका क्यों ना हो। सो आई विल सजेस्ट 60% टाइम इसका, 40% टाइम एट द मैक्स, नॉट मिनिमम, एट द मैक्स टू योर जीएस। लेकिन अगर किसी ने बहुत अच्छी होल्ड कर ली ऑप्शनल के ऊपर और उसका जीएस में पिछले 3-4 साल से काफी खराब आ रहा है, तो उसके लिए स्ट्रेटेजी ऑब्वियसली उसकी स्पेसिफिक रहेगी कि मेरा ऑप्शनल अगर बहुत स्ट्रांग है तो शायद मैं 60% टाइम जीएस को दूंगा। अगर प्रीवियस ईयर्स में मेरी जीएस के स्कोर बहुत ही खराब रहे हैं, तो एवरेज रहे हैं तो मैं जीएस में टाइम नहीं दूंगा, मैं फिर भी ऑप्शनल में ही टाइम दूंगा। खराब रहे हैं तो दूंगा, क्योंकि ऑप्शनल में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स रहे हैं और जीएस में बहुत खराब, तो आई थिंक आई विल गिव रिवर्स 60% टू जीएस एंड 40% टू योर ऑप्शनल्स, only if it is very annoying scores in your GS and very exceptional scores in your optionals, or else everybody the strategy remains same, 60:40 should be an ideal ratio for your optional and your GS. So this is I think can be a good one, because I personally believe optional पे hold होनी ज्यादा जरूरी है, because optional के अंदर डिटेल चीजें पढ़ते हैं, उससे हमारा ऐसे भी इम्पैक्ट कर जाता है और हमारे optional पे भी स्कोरिंग लाने की काफी अच्छी संभावना रहती है। Anything else which you want me to specifically discuss? One question that was put up is, tips for tackling the language paper A, Hindi. Yeah. Okay. So, yeah. Okay. So as far as language paper को seriously लेना guys, क्योंकि language paper के अंदर कम से कम 10% जनता बाहर हो जाती है, जैसे CSAT में इस बार बहुत ज्यादा हुई। इनफैक्ट लैंग्वेज पेपर में देखो एक सिंपल सा फंडा है, ना तो कोई MA या BA लेवल का आने वाला है, एक
जिसका हिंदी है, देखो आउट ऑफ हिंदी मुझे शायद आइडिया नहीं रहेगी, अगर आपका कोई दूसरा लैंग्वेज है तो हिंदी अगर जाए तो जैसे मैंने भी 10th स्टैंडर्ड में लास्ट हिंदी पढ़ी थी आईसीएसई बोर्ड के अंदर, उसके बाद कभी हिंदी नहीं पढ़ी। तो मेरे साथ हुआ क्या था, अब मैंने स्पेसिफिकली प्रैक्टिस की थी, कम से कम 15 दिन मैंने डेली 1-1 घंटे लिख के, मतलब सामने से उठा के कॉपी पेस्ट ही लिखा है चीजों का, ताकि मेरा वो एक रिदम बन जाए हिंदी लिखने का। बिकॉज यार 3 साल ग्रेजुएशन के, 11-12, फिर मैंने मास्टर्स की, बहुत सारी चीजें छूट गई थी मेरी हिंदी से रिदम। तो मैंने 15 दिन डेली 1-1 घंटे प्रैक्टिस की हिंदी लिखने की, ताकि वो त्रुटियां ठीक हो जाए, या फिर एटलीस्ट मेरी हिंदी थोड़े पढ़ने लायक लगे। ऐसे नहीं है कि कॉकरोच को इंक में डालो और चला दिया और ऐसी गंदी सी हैंडराइटिंग आई है। सो आई प्रैक्टिस दैट एंड आई विल सीरियसली सजेस्ट यू प्रैक्टिस इट। एक जो चीज ध्यान में रखने वाली हिंदी में मुझे लगा जो थी, वो कि जो शायद 100 मार्क या 80 मार्क का आसपास, अब पता नहीं रिसेंटली कितना ग्रामर आ रहा है, क्योंकि लैंग्वेज पेपर ऑब्वियसली मैंने नहीं देखे रिसेंट टाइम में। जो ग्रामर वाला पार्ट आता है, 1-1 मार्क का क्वेश्चन, 2-2 मार्क का क्वेश्चन, पर्यायवाची या फिर ऐसे वाले शब्द, इसमें ट्राई टू अटेम्प्ट एज मच एज पॉसिबल, बट दैट शुड बी द लास्ट सेक्शन यू अटेम्प्टेड। पहले आप ट्राई करना प्रेसी अटेम्प्ट करो, सेकंड आप एसे अटेम्प्ट करो, थर्ड आप कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट करो। ये 3 चीजें। क्यों? मैंने नोट किया है कि मेरे खुद के फ्रेंड्स जो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे लैंग्वेज के अंदर, हुआ ये कि उन्होंने ग्रामर पहले अटेम्प्ट कर लिया और उसके बाद कहीं ना कहीं या तो उनका प्रेसी छूट गया, या फिर ऐसे में गड़बड़ हो गई, या फिर किसी और में। और देखा है मैंने बहुत ज्यादा लोग जो कोई एक टॉपिक छोड़ देते हैं, वो हिंदी क्वालिफाई नहीं करते हैं। हिंदी स्पेसिफिकली हिंदी बोल रहा हूं मैं। क्यों? हो सकता है एग्जामिनर उसे लाइट लेके चल रहा है कि अच्छा ये सामने वाला ये समझ के रखा है कि बिना इसको लिखे मैं क्वालिफाई कर लूंगा, क्योंकि क्वालिफाई तो करना है यार, 100 मार्क्स तो लाना है। सो मेक अ पॉइंट, ये तीनों में से एक भी टॉपिक नहीं छूटनी चाहिए। और मैनेज करने का टाइम प्रॉब्लम रहेगा इधर, क्योंकि हमारी पेस उतनी फास्ट नहीं रहती है। तो माय सिंसियर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज टू एटलीस्ट 15 दिन 20 दिन, जैसे आपकी लेवल ऑफ हिंदी यहाँ पे है, एटलीस्ट आधा 1-1 घंटा किसी भी हिंदी न्यूज़पेपर को उठा के उसका 2-5 पैराग्राफ लिखने की प्रैक्टिस करो, ताकि वो एक रिदम आ जाए, प्रैक्टिस आ जाए सफिशिएंट। कोई स्पेसिफिकली चीज पढ़ने की लिटरली कोई जरूरत नहीं है। ऐसे कॉम्प्रिहेंशन प्रेसिस के वही रूल्स है जो नॉर्मली रूल्स आपने पहले पढ़े होंगे। सो दैट इज वेल सिंपल। कॉम्प्रिहेंशन में सिर्फ इतना है कि मैंने हमेशा ये रखा है कि कॉम्प्रिहेंशन के जो भी चीजें आती थी, मैं सीधा एज पॉइंट टू पॉइंट लिखता था, उसको घुमाता फिराता नहीं था। एज यू ऑल नो कॉम्प्रिहेंशन के जो रूल्स होते हैं। सो आई विल सजेस्ट प्लीज प्रैक्टिस कि कहीं पे यहाँ पे ब्लंडर नहीं हो जाए, पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। और लोग होते हैं फेल लैंग्वेज पेपर के अंदर, मेरे खुद के फ्रेंड्स का एग्जांपल है मेरे पास। मेरे स्कोर मुझे कभी पता नहीं चले, द रीजन बीइंग उस टाइम क्वालिफाई नहीं होते थे तो ही हिंदी के स्कोर्स देते थे वो लोग। तो फॉर्चुनेटली हर बार वो मींस क्वालिफाई हुआ है, तो वो मेरा मार्क्स पता चला नहीं मेरे हिंदी में रहे क्या। बट यस डेफिनेटली पास तो हुआ ही हूँ, तभी इंटरव्यू दिया होगा। ओनली रीजन 15 दिन आप प्रैक्टिस करो, जस्ट 15 डेज बिफोर योर एग्जामिनेशन आप एक रिदम बना के रखो। कोई पढ़ने की आई डाउट स्पेसिफिकली, किसी की बहुत ही ज्यादा खराब है तो प्लीज थोड़ा सा बेसिक कोई किताब जैसे 10th स्टैंडर्ड की प्रिस्क्राइब्ड आईसीएसई बुक या कोई और किताब जो आपको सूटेबल लगे, अवेलेबल हो, विल मोर देन सफाइस। कोई प्लीज पढ़ने मत जाना वोकैबुलरी पढ़ लेते हैं, पर्यायवाची पढ़ लेते हैं, विलोम शब्द पढ़ लेते हैं, कोई जरूरत नहीं है। या क्या बोलते हैं, मुहावरे पढ़ लेते हैं। एक बार देख लो अगर पॉसिबल है, 10-10 15-15 मिनट, नहीं तो वो आर नॉट गोइंग टू डिटरमाइन योर मार्क्स। प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन, एसे विल डिटरमाइन योर मार्क्स, आई मीन योर क्वालिफिकेशन इन दिस, नॉट मार्क्स. So this was for Hindi only. Rest language I don't have any clear idea of कि suppose Gujarati या Marathi या फिर कोई और language. Anything else नीलेश जी? Or anybody else, anything else students, कोई भी part हो, please tell, be free to it if you have any of it. Tips for philosophical essays. अच्छा, yes, tips for philosophical essays. My favorite part has always been philosophical essays. मैंने ऐसे पेपर में एक चीज हमेशा क्लियर की थी कि टेक्नोलॉजी वाला पार्ट नहीं लिखूंगा मैं। क्यों? टेक्नोलॉजी वाला पार्ट या फिर कोई फैक्चुअल ऐसे आता है। जैसे एक टाइम पे मेरे टाइम में आया था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक ऐसे आया था। डिस्पाइट बीइंग फ्रॉम अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बैकग्राउंड, जहाँ पे हम पीपी के 50 मॉडल पढ़ते हैं, मतलब काफी डिटेल में पढ़ते हैं, मैंने अटेम्प्ट नहीं किया हुआ ऐसे। क्यों? ऐसे में मार्क्स 2 चीज पे डिपेंड करते हैं। अब मैं ऐसे की थोड़ी सी टिप देता हूँ गाइस, फ्लॉलेस टिप, चाहे वो हार्वर्ड में लिख देना, चाहे कैम्ब्रिज में लिख देना, चाहे अपने लाइफ में कहीं पे भी ऐसे लिख देना, खराब मार्क्स आने की कोई सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन तरीका ऐसे ही अप्लाई करना। और अभी और सीधा सीधा यार, मेरे वर्ड्स को सरमन मत लो। अभी आज एक ऐसे लिखो, अपने किसी कलीग से या टीचर से इवैल्यूएट करो, अपने आप सीधा हो जाएगा, अच्छा यार ये तो बहुत जबरदस्त ऐसे लिखा है तुमने, चाहे तुम्हारा कंटेंट उतना स्ट्रांग नहीं है उसके अंदर। क्या होता है, जब कोई फैक्चुअल या टेक्नोलॉजिकल क्वेश्चन आता है, आपके पास स्कोप कम हो जाता है ऐसे के अंदर। अब पीपीपी जो लिखनी है, मैं पीपीपी के अंदर कितना घुमाऊंगा, पीपीपी होते क्या है, मॉडल्स क्या है, पॉजिटिव्स क्या है, नेगेटिव्स क्या है, या रीसेंट कोई एग्जांपल्स, उससे ज्यादा स्कोप नहीं है मेरे पास उसके अंदर। तो ऑलवेज आई मेड, मैं नहीं बोल रहा तुम लोग बनाओ ऐसे,
आई मेड अ पॉइंट कि मुझे नहीं लिखना है। हाँ, उस टाइम मेरे पास दूसरा ऐसे था बेटर जो आ रहा था मुझे रूरल हेल्थ के ऊपर, तो मैंने वो लिखा। अगर नहीं आ रहा होता तो पीपीपी लिखना पड़ता मुझे, वो अलग एक सिनेरियो बन जाता है। लेकिन अगर मेरे पास चॉइस है, मैं टेक्नोलॉजिकल एसेस और कहीं ना कहीं फैक्चुअल एसेस को अटेम्प्ट नहीं करता। फैक्चुअल एसे कैसे है, जैसे 2007 के अंदर या 6 के अंदर एक ऐसे आया था, जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम ऑब्वियसली 6 के अंदर 6 का था शायद ये, हाँ 6 का ही था। आरटीआई के ऊपर ऐसे आया था, राइट टू इंफॉर्मेशन के ऊपर ऐसे टॉपिक आरटीआई आ गया था ऐसे। तो मैं होता, मैं ऐसे नहीं, ये ऐसे ट्राई करता कि उतनी कोशिश नहीं करता उसको अटेम्प्ट करने की। क्यों? एक तो आरटीआई के ऊपर लिखने के लिए मुझे एक एक सेक्शंस, एक एक चीजें डिटेलली उसके पता हो। और उस टाइम जैसे जब आरटीआई आया ही था तो ऑब्वियसली उसकी वीकनेसेस उस लेवल पे पता नहीं चली थी। आज फिर भी आरटीआई अटेम्प्ट कर लूं, मेरे पास बहुत डेटा आरटीआई के ऊपर, फिर भी इसके अंदर टेक्निकली सेक्शन वाइज, एक्ट वाइज आपको डेटा देना पड़ेगा। सो आई यूज्ड टू अटेम्प्ट बेसिकली एसेज व्हिच आर ओपन एंडेड, जैसे सोशल या जैसे फिलोसॉफिकल। ठीक, अब जब फिलोसॉफिकल ऐसे होता है तो उसके एक टिप बताता हूँ, सिर्फ जैसे स्पेसिफिकली फिलोसॉफिकल पूछा आपने इसलिए। फिलोसॉफिकल ऐसे के अंदर हमेशा हमेशा started with the micro realities, go to the maximum realities over a period of time। 2008 या 9, इनफैक्ट मेरे टाइम की बात है, 8 या 9 बस कंफ्यूज हो रहा है। एक ऐसे आया था, the good fences decides, good fences makes good neighbors। ये ऐसे है यूपीएससी का, गुड फेंसेस मेक्स गुड नेबर्स। फिलोसफी पे ही आऊंगा मैं, और ये भी फिलोसफिकली है, ये एक्सेप्ट प्रॉपर्ली फिलोसफिकल है। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट यू आर गोइंग टू राइट इन दिस एसे? अब यार मैं भी आपके आंसर कर रहा हूं तो आपसे भी एक्सपेक्ट करता हूं आंसर दोगे। गुड फेंसेस मेक्स गुड नेबर्स, हाउ विल यू अप्रोच द एसे? बताओ, आंसर तो देना पड़ेगा, तब मैं ये टॉपिक पे बताऊंगा फिलोसफी का ऐसे कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, कौन से पार्ट से रिलेटेड है। Okay, good enough. Demarcated boundaries is equal to less boundary disputes. We can start with our housing neighbors. हाँ, यहाँ पे चीजें होती है। अब 99% जो बंदा ये सोच रहा होगा वो सोच रहा होगा इंटरनेशनल रिलेशनशिप, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया अफगानिस्तान, पता नहीं किस किस लेवल पे सोचा होगा। मैं इस ऐसे को स्टार्ट करता मेरे पर्सनल लेवल से कि कैसे फैमिली लेवल पे अप्लाई होता है, कैसे certain boundaries which should be maintained between father and son to have a better fruitful relationships। जैसे for example, maybe there are certain things which are present in our Indian society which are considered as disrespectful, smoking in front of your dad, ठीक, और using vulgar words in front of your family। कहाँ है ये? एटलीस्ट चाहे हमारा मॉम डैड या क्या सन मॉम या सन फादर का रिलेशन कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, कुछ फेंसेस बना के रखनी पड़ती है, कुछ दूरियां बना के रखनी पड़ती है, कुछ डिवीजन बना के रखना पड़ता है, तब जाके फ्यूचर में वो लॉन्ग टर्म हेल्दी रिलेशनशिप रहता है। यहाँ से स्टार्ट करो ना, फिर जाओ ना आईआर के ऊपर। तुम आईआर से स्टार्ट कर देते हो तो ऑब्वियसली बात है ऐसे का स्कोप ही नहीं बच जाता तुम्हारे पास। तो फिलोसफिकल ऐसे में सिर्फ एक टिप दिमाग में रखना, ऑलवेज जब वो ब्रेनस्टॉर्म करो ऐसे का, ऑलवेज डू इट फ्रॉम द लोएस्ट पॉसिबल ग्राउंड। कि कोई क्वेश्चन ओपन एंडेड है तो उसे सिर्फ लोएस्ट अपने से सोचो, अपनी फैमिली पे जाओ, अपनी रेसिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन पे जाओ, अपने स्टेट पे जाओ, अपने रीजन पे जाओ, अपनी कंट्री पे जाओ, अपने वर्ल्ड पे जाओ, ऐसे डायमेंशन से सोचो। 600 वर्ड तुम्हारे ऐसे निकल आएंगे और उसके अंदर तुम्हें और ये ऐसे पुराना स्टाइल हो गया है, सोशल डायमेंशन, पॉलिटिकल डायमेंशन, इकोनॉमिक डायमेंशन, फलाना डायमेंशन। देखो अभी मेरे को किसी ने दिया पर्सनल, सोशल, नेशनल, गुड, नो प्रॉब्लम विद दिस। लेकिन बॉस ये तरीका 10th स्टैंडर्ड का ऐसे लिखने का था जो आईसीएसई के अंदर हम इंग्लिश पेपर 1 के अंदर लिखा करते थे। यार यू आर मैच्योर्ड इनफ गोइंग टू बी एन आईएएस ऑफिसर्स, नीड टू प्रेजेंट अ पिक्चर व्हिच इज लार्जली गोइंग टू बी रिप्रेजेंटिंग द रियलिटी इन द एसेज। दूसरी चीज, एसे को हमेशा जज किया जाता है नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये टेक्निकलिटीज बोल रही है, डेफिनेशंस बोल रही है कि essay is always on the basis of how you present your content rather than the content or the quality of your content। जब प्रेजेंटेशन ही पूरी गेम बना रही है तो मैं ऐसे में प्रेजेंटेशन पे फोकस करूं ना, कंटेंट पे क्यों? अब प्रेजेंटेशन पे कैसे फोकस किया जाता है? सीरियस, आप जब ऐसे बनाते हो तो ऐसे में ब्रेनस्टॉर्म करते हो, पीछे जाके कुछ पॉइंट्स लिखती है। मैं ऐसे जब बनाता था तो मैं ऐसे लिखता था, एक पे इंट्रो, एक पे बॉडी, एक पे कंक्लूजन। अब मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टार्ट करता था कम से कम 25-30 मिनट। कोई पॉइंट आया, ठीक है, इंट्रोडक्शन का आया, मैंने लिखा, फिर 2 पॉइंट और आए, लिखा, और 5 पॉइंट आए, मैंने इंट्रोडक्शन मतलब जो मुझे लग रहा है इंट्रोडक्शन पे सेट बैठेगा, वैसे कुछ पॉइंट बॉडी के आए, मैंने बॉडी वाले में लिखे, 5, 10, 20, 25 जितने भी है।
कंक्लूजन के 3-4 पॉइंट आए कि ये यूज हो सकते हैं, बनाए, फिर मैं इसको स्ट्रक्चराइज करता था। अब यहां तक तो सिंपल है, शायद तुम अलग तरीके से करते हो, मैं एक वेल अरेंज्ड तरीके से करता हूँ। तुम एक साथ लिखते जाते हो, फिर कंफ्यूजन हो जाता है, इंट्रोडक्शन में कौन सा लिखूं, बॉडी में कौन सा लिखूं, कंक्लूजन में कौन सा लिखूं। मैं तीनों को डिवाइड ही कर लेता था, ताकि जब इंट्रोडक्शन देखना है तो मुझे यही पॉइंट देखने हैं और इंट्रोडक्शन बनाना है। कंक्लूजन आऊंगा तो ये, या बॉडी आऊंगा तो ये। जो एक इंटरनेशनल एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। अब जब मैं इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में पॉइंट्स बना लेता था, उसके बाद एक गोल होता था मेरा, इंट्रोडक्शन, बॉडी। आज के कंटेक्स्ट से अप्लाई करके बता रहा हूं, 250 वर्ड अप्रोक्सीमेटली, 200 भी चलेगा, 220 भी चलेगा, 180 भी चलेगा, अप्रोक्सीमेटली 200 वर्ड, लेट्स से अप्रोक्सीमेटली 200 वर्ड्स। 1000 वर्ड का ऐसे होता है, इधर मुझे सिर्फ 600 वर्ड यूज करना है। अब करता क्या था, मैं पूरा का पूरा एग्जैक्ट इंट्रोडक्शन जो मेरे को लिखना है पेपर में, रफली लिखता था, वर्ड टू वर्ड, अल्फाबेट टू अल्फाबेट, पंचुएशन टू पंचुएशन बनाता। इंट्रोडक्शन बनाया, फिर उसको छापा, फिर उसी रफ पेज में मैंने कंक्लूजन बना के रख लिया, पूरा का पूरा 200 वर्ड्स का जो मुझे लिखना है वो कंक्लूजन बनाया मैंने। बॉडी को अकॉर्डिंग टू इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन फिट कर दिया। बॉडी पे मैंने लीस्ट एफर्ट डाला, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में मैंने हाईएस्ट पॉसिबल एफर्ट डाला, कि अगर मेरे को इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखने के अंदर 20-20 मिनट लगे हैं, तो मैंने बॉडी को 10 मिनट में निपटाया है, खत्म। क्यों पता है, तुम लोग उल्टा चलते हो, 99%। तुम ऑलवेज मीन्स एवरीबडी हियर, नॉट द पीपल हु आर देयर इन द सेशन। क्या करते हो, बॉडी पे इतना फोकस करते हो कि कंक्लूजन तक आते आते कंक्लूजन मियरली मेंशन, कुछ भी लिख के छोड़ दिया, खत्म। क्यों, बॉडी तक तुम बड़े इंप्रेसिव लिखते हो, होगा क्या पता है, 1000 वर्ड का ऐसे है। एग्जामिनर जब तुम्हारा ऐसे करेक्ट करने बैठेगा, इंट्रोडक्शन उसे इंप्रेस करेगा। इंट्रोडक्शन इज समथिंग व्हिच फोर्सेस द एग्जामिनर टू रीड योर क्वेश्चन और एसेज। बॉडी पढ़ेगा, कंक्लूजन तक आते आते तुम्हारी दोनों चीजें भूल जाएगा वो। और कंक्लूजन इंपैक्टफुल नहीं है तो तुम्हारी बॉडी चाहे कितनी भी सुनहरी क्यों ना हो, जबरदस्त क्यों ना हो, मार्क्स तुम्हारे लेस देन एवरेज है। कंक्लूजन 200 वर्ड का मैंने जबरदस्त लगा दिया उधर, तो उसके अंदर लास्ट में उसके चेहरे पे वही स्माइल रहेगी, यार बढ़िया ऐसे लिखा हो, बढ़िया। क्यों, बॉडी तक तो निकल चुकी है, किस किस का याद रखेगा ऐसे वो। और 50 पेपर पढ़े हैं भाई, 1000 रुपए डेली मिल रहे हैं एक पेपर के। मतलब कंक्लूजन इतना इंपैक्टफुल हो कि व्हेन ही स्ट्रोकिंग हिज पेन टू गिव यू मार्क्स, that will be the only part he'll remember. So never ignore a conclusion in your essay. आज एक ऐसे लिख के देख लेना जहां पे पहले ये दो बनाओ, बॉडी को इन दोनों में जो पार्ट लिखा उसके अकॉर्डिंगली फिट कर दो। एडजस्ट करना है, जो इधर तुमने लिखा है इसके कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं हो, बस उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी पॉइंट फिट कर देना उधर। सी द मार्क्स ऑफ योर एसे, चाहे किसी भी एग्जामिनर से या किसी भी टीचर से करेक्ट करवा लेना, बट फोकस तुम्हें इन दोनों पे करना पड़ेगा। यहाँ पे पहले प्रॉपरली बनाना, ये भी पहले प्रॉपरली बनाना, और एटलीस्ट 150-200 वर्ड तक का बनाना। यार आपको लगे बॉडी पे थोड़ा ज्यादा है तो 150 वर्ड बना लेना, नो इश्यूज, लेकिन एक प्रॉपर कंक्लूड करे ऐसे कि यस हाँ इट इज नाउ ऑन द वर्ज ऑफ इट्स डेथ। तो एटलीस्ट इस तरीके से होना चाहिए। दिस इज द वे to specially attempt any of your essays, in fact not just philosophical for that matter। और in fact philosophy के अंदर सिर्फ एक ही काम आती है चीज कि आपने कहीं ना कहीं आपने पर्सनल एग्जांपल से चीजें की है। फॉर एग्जांपल आपको अप्लाई करके बताता हूँ, फास्ट एंड स्टडी विंस द रेस। Here is something where I can use the entire journey of my civil services, that the very preparation of civil services in the contemporary times largely shows that the proverb from slow and steady wins the race have largely shifted to fast and steady wins the race. As in UPSC, one not only have to largely cover the entire syllabus as soon as possible, but at the same time, the patience, the persistence required in the civil services journey, which is an year-long journey, is highly important in order to determine your success in the examination. ऐसे अप्लाई करूंगा, नहीं लगता ऐसे ब्रीथिंग है मेरा, रट्टा नहीं मारा है, इधर उधर नहीं लगाया, कि रियलिटी में इस बंदे के पास राइटिंग स्किल्स है। सो फिलॉसफी इज ऑलवेज रिमेंबर आपकी ग्राउंड रियलिटीज पे बेस्ड होनी चाहिए, और कोई भी ऐसे का ये कॉमन स्ट्रक्चर ऐसे होना चाहिए कि इन दोनों तरीके से आप ऐसे करोगे, ऐसे में बहुत अच्छी चीजें, अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, एनीबडी एल्स, एनीथिंग एल्स? हेलो नीरज जी, एनीथिंग एल्स? Anybody has any further questions? Okay, I Prateek, think Radhika, Shubham, Vipul, anybody, if anybody is there, please feel free. Nobody is going to create an opinion here कि okay, you know, लोग क्या सोचे, लोग कुछ नहीं सोचते यार। It's like if you have the minutest of the doubt, मुझे बताओ, चलेगा। I'll try my level best to clear it up.
और नोवेलिटी वाला ध्यान रखना, बहुत सारी चीजें बनी है, आप भी बनाना और तभी जाके चीजें कहीं ना कहीं आएगी और बहुत मैटर करता है दोस्त ये। ठीक है, देन आई विल वाइंड अप द सेशन नीलेश जी फिर। Sir, listening to you, Divakar ji, it's हाँ, been very engaging, very interesting and थैंक refreshing. यू। Certainly, we are listening to someone who has lived and breathed it all. I believe the students will do very well to take your advice. Definitely, definitely. You know, If there is these anything, please students do let know. Nilesh ji will, we'll again look into this. और एक चीज ध्यान रखना guys, I have been there, I have done that. That is a different thing. I'm not, I've gone through that, but I've not done that. So it does not make any sense. Okay, finally you get into the rank or not. It is the point where you enjoy the process. एक सिंपल से शेयर से मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे लिए बहुत पास में है ये शेयर। इनफैक्ट आई मीन ऑलवेज आई फेल्ट एट वाइब्स विद दिस दैट मंजिलें नहीं मिली तो गम नहीं, खुशी इस बात की है कि इन रास्तों पे कभी हमारा कारवां तो हुआ करता था। तो दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। एंजॉय द प्रोसेस, डोंट स्ट्रेस योरसेल्फ। द रिजल्ट इज समथिंग विच ओनली डिटरमाइंड बाय योर प्रोसेस। आप बोलते हो ना, जो बोया है सो पाया है, सो पाओगे। इट्स द सेम थिंग इन द प्रोसेस। अगर कुछ एक्सेप्शनली डिफरेंट करना है रिजल्ट में, तो उसको अभी प्रोसेस में डालो, नहीं तो दैट इज डिफिकल्ट कि आपको रिजल्ट कुछ और मिले और प्रोसेस में आपने कुछ नहीं डाला है। एंड गाइस, कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, स्टार्ट stretching yourself. This is one thing which will make you, feel lively at the same time, reduce your stress. Thank you all. Okay, Nilesh ji, I'll leave it open to you all. Yeah, thank you, Divakar ji. Thank you so much for taking this session with the students. I was also very happy to hear the comments, the opinions that were put forward by the students. I'm sure they are all very bright and they have a very good shot at making it happen. Definite. I just have a little statement to give. It is this journey of the struggle, the preparation, and the rigor associated with it, which will turn them, the aspirants, into officers. And all the very best for that. On behalf of all students and the trust, I thank you so much. Pleasure has been mine, Nilesh. And we will carry on this engagement in whatever way we can help this, and take it forward. ठीक है, thank you then. Thank you all of you and best of luck to all of you. So, thank you so much, everybody. We'll wind up the session here. Thanks a lot for your patience and for joining in today. Thank you.